Now I am extremely happy to introduce our today's distinguished speaker, CA Himanshu Singh. CA Himanshu Singh is a distinguished fellow chartered accountant with a master degree in law, specializing in indirect taxation. His extensive expertise encompasses indirect taxes and a deep-seated interest in technology, fintech, artificial intelligence, and system automation. Mr. Singh has made significant contributions as a trainer for Central Excise and Service Tax Department under NACIN, that is National Academy for Customs, Indirect Taxes and Narcotics, and as a faculty member for Uttar Pradesh State GST Department. Beyond training, he actively engages with key officials on GST implementation and is frequently invited to deliver lectures and lead panel discussions on indirect taxes. In addition to his tax expertise, Mr. Singh has a great interest in technology, system automation, and AI. He has been instrumental in development of implementation of AI and system automation solutions. Notably, one of the winners of Hackathon 1 organized by ICAI. His work includes developing advanced accounting system, reporting frameworks, and SOPs for various organizational activities. He is also involved in creating AI-driven solutions for professionals and MSMEs, demonstrating his prowess in integrating technology with traditional financial practices. His consulting roles extend to large corporate bodies, listed companies, public sector undertakings, and both state and central government entities. His professional engagements as a trainer and visiting faculty includes ICAI, Central GST Training Institute, UP GST Training Institute, and various administrative training institutes, further showcasing his breadth of knowledge and practical insights in indirect taxation, system implementation, and information technology. We are extremely happy to have you here, sir. Now I request CA Pranav Apte to felicitate our today's speaker by offering a memento or a gift. Thank you so much. Now I request our today's session speaker, CA Himanshu Singh, to start the session. A very good afternoon to all of you. A very good afternoon to all of you. Thank you. Any session after the lunch is always a little bit heavy, but my job is to make you feel light. So I hope that everyone sitting here will gain some good insight, some good information, and some practical points that will be useful for your day-to-day practice. I hope most of the people sitting here are using any AI tool in your practice, or I hope so. Is it true? Please raise your hand. How many are using on daily basis? Very good number. It was expected from the Pune that being an IT city, it must be there. Can I have a caller mic? Before starting the session, before demonstrating the use cases, before going to the actual intricacies of the session, I just want to discuss few points so that we can be familiar with the tool technology, so that we can understand what are the capabilities, what are the benefits, and how we should use it. So first of all, we should understand before using any technology or thing, so basically, like human being, whenever any person come in your office as your staff, assistant, partner, or anyone through whom you want to take any service or any assistance, what you do first? Before appointing any employee, you take interview. You understand what are his capabilities, how he can do, what are his strengths, what are his weakness, what task to be executed. We should get it executed from one person and not to be executed from the other. We do or not? हमारे ऑफिस में होता है ना कि ये काम मेरा ये वाला स्टाफ ज़्यादा अच्छा करेगा, तो हम ये टास्क इसको देते हैं और दूसरा जो टास्क है हम दूसरे को देते हैं. ऐसा करते हैं ना.
इन द सेम मैनर वी शुड डू विद द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के साथ भी हमें सेम यही करना है। आई होप यू आर कंफर्टेबल विद हिंदी ऑल्सो। थैंक यू। सो we should do the same thing with the technology. If we will start with the same concept, because understanding the technology capabilities and limitations, we can get the maximum from the technology for our benefit. तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि भाई टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है, और ये जो टेक्नोलॉजी आज हम यूज़ करने जा रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं, हाउ इट इज़ केपेबल फॉर आवर डे टू डे यूज़। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक थिंग क्या होती है, जैसे एक जर्नल क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ एआई। हम लोग एआई के बारे में बात करते हैं। 2022 से पहले, बिफोर 2022, एआई टर्म हम लोग बहुत कम यूज करते थे। अग्री और नॉट? व्हेन वी स्टार्टेड यूजिंग द टर्म एआई, एनीबडी कैन आंसर? यस, यू आर राइट, आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ चैट जीपीटी। करेक्ट? चैट जीपीटी के आने से पहले हम लोग एआई वर्ड सुना था, we have heard it, but not using on day to day basis. We are not thinking about AI. We thought that AI is a artificial intelligence, any robotic thing. कोई रोबोट होगा, कंप्यूटर होगा, AI is a computer जो ऑटोमेटिक बहुत कुछ कर सकता है। बट क्या क्या कर सकता है, we never thought it. As a chartered accountant, जो इंजीनियर्स हैं वो कर रहे थे, but as a chartered accountant we were not too much bother about those things. But after the introduction of the chat GPT, we started thinking of it, because the capability that produced by the chat GPT was phenomenal and changed the entire world in every segment, every sector, everything. So first of all, we should understand what is AI that can be used for our profession. So basic thing is, artificial intelligence is nothing but it is an intelligence given by a human being to a machine. Agree or not? तो AI जो है ह्यूमन बीइंग की नॉलेज से ऊपर नहीं है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि उसके अंदर इतनी कलेक्टिव इंफॉर्मेशन एक साथ दी गई हैं, उसको इतनी ट्रेनिंग से एक साथ दी गई हैं जो एक ह्यूमन से एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। उसके अंदर जो कैपेबिलिटीज़ हैं सिस्टम की, कंप्यूटर की, जीपीयू की, वो कैपेबिलिटीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में एक्सपेक्ट नहीं हो सकती हैं। दैट इज़ फाइन। हम लोग क्या प्लेन की रफ्तार से उड़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं? नहीं, बट प्लेन बनाया तो हम ही लोगों ने है ना, ह्यूमन बीइंग नहीं है। सो इन द सेम मैनर एआई यही काम करता है। तो सबसे पहले एक चीज़ ये जानने की ज़रूरत है, जैसे आज की डेट में चैट जीपीटी के आने के बाद ही हम लोगों ने एआई को देखना चालू किया। कैन यू बिलीव, चैट जीपीटी जितना काम करता है, चैट जीपीटी जितना काम कर रहा है, वो एआई का मुझे लगता है, मेरी अंडरस्टैंडिंग में 1% भी काम नहीं है। इट इज़ कैटेगराइज्ड एज अ वीक एआई। एआई की वेरियस कैटेगरीज होती हैं। एक होता है वीक एआई, एक होता है नैरो एआई, और एक होता है सुपर एआई। ठीक है, तो जैसे वीक एआई चैट जीपीटी के आने से पहले बिल्कुल एग्जिस्ट करता था। वी वर यूजिंग दैट एआई इन आवर डे टू डे यूज वर्किंग, लाइक गूगल मैप्स। गूगल मैप्स वी वर यूजिंग, वो हमें बताता था कि भाई इधर ट्रैफिक है, रेड कलर से दिखेगा तो ट्रैफिक ज़्यादा है, ऑरेंज में लो ट्रैफिक है। सो दैट इज़ द एनालिटिक्स बेस्ड ऑन द डेटा एंड बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग गिवन टू द सिस्टम्स बाय द गूगल लिंक। सो दैट वर इन एग्जिस्टेंस, बट आफ्टर द चैट जीपीटी इज अ टूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। There is a branch of artificial intelligence that is called as generative AI. Have you heard it? सबने आप में से सुना है जनरेटिव एआई? ठीक है, जितने लोगों ने नहीं सुना है, आज आप बिल्कुल इसको समझ लीजिए है क्या। चैट जीपीटी इज अ टूल ऑफ जेनरेटिव एआई। जेनरेटिव एआई का एक टूल है। चैट जीपीटी जैसे जेनरेटिव एआई के वेरियस टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। नंबर 1 चैट जीपीटी, इसको हम लोग जानते हैं, गूगल जेमिनी। नंबर 3 आपका क्लाउड एआई, आपका मेटा एआई जो आपके व्हाट्सएप पे दिखता है। ऐसे करके कम से कम 200-250 टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो जेनरेटिव एआई के काम में आते हैं। तो पॉइंट यहाँ पर आता है कि चैट जीपीटी या जो अदर टूल्स अवेलेबल हैं उसका यूज़ कैसे करते हैं, इसके पहले हम जान लें कि वो काम कैसे करता है। इफ़ वी विल अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स, देन इट विल बी ईजी फॉर अस टू टेक द वर्क फ्रॉम दैट टूल। सो अच्छा, आप में से किसी को फुल फॉर्म पता है चैट जीपीटी का? चैट तो मतलब चैटिंग हो गई, जीपीटी का फुल फॉर्म पता है किसी को? एनीबडी नोज? नो, कोई बात नहीं।
देखिए, जिसको नहीं आता है बिल्कुल कोई घबराने की बात नहीं है, हम सब सीखने के लिए बैठे हैं। मुझे भी नहीं आता था, सीखा आ गया, अब आपको बता रहे हैं, आप भी सीख जाएंगे, आप किसी को बताएंगे। जीपीटी का फुल फॉर्म होता है जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। जितने भी टूल्स हैं ये जेनरेटिव एआई का एक पार्ट है। जेनरेटिव का मतलब क्या होता है, जेनरेटिव का मीनिंग क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इट हैज कैपेबिलिटी टू जेनरेट। प्लीज माइंड दिस वर्ड, इट हैज कैपेबिलिटी टू generate. Pre-trained, generative pre-trained. Pre-trained means some training have been given to that tool on the basis of certain parameters, certain quality standards, certain other things, rules, regulations के बारे में training दी गई. So there are certain training given to that particular tool. And transformer is the technology through which it works. It is a basically technology term. It is called as it works on transformer architecture. I'm not going on the detail for that thing, just to understand. ट्रांसफॉर्मर जो अंदर उसका है वो ट्रांसफॉर्मर उसकी एक टेक्नोलॉजी है, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर कहलाता है, जिसके तहत चैट जीपीटी काम करता है। सो इट इज अ जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। सो अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये वर्ड है जेनरेटिव। ये हमारे इस टूल की कैपेबिलिटी बताता है कि ये टूल काम कैसे करता है। इट वर्क्स ऑन दी जेनरेटिव एआई। तो जेनरेट करने की इसके अंदर क्या है, कैपेबिलिटी है। अब आप में से किसी ने चैट जीपीटी के थ्रू नोटिस का रिप्लाई लिखा है? एनीबडी लिखा हुआ है सर? अच्छा, करा के गए हैं, वेरी गुड, ठीक है। आप में से किसी ने ईमेल लिखी है? बहुत लोगों ने लिखी होगी, ड्राफ्ट ईमेल फॉर दिस टास्क, ठीक है। पॉइंट यहां पर आता है कि चैट जीपीटी ईमेल लिखता कैसे है, उसको कैसे पता? उसके पास एक हैवी ह्यूज डेटा सेट है, ह्यूज डेटा सेट अवेलेबल है उसके पास। उस डेटा सेट पे उसको कुछ सर्टेन ट्रेनिंग्स दी गई हैं। ट्रेनिंग्स दी गई हैं किस तरीके की, कि आपको जनरेट करना है रिस्पॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन पैरामीटर्स। तो उसको बताया गया कि ईमेल लिखने के टैक्टिक्स क्या होती हैं, कि भाई किस तरीके से, एटिकेट्स क्या होते हैं ईमेल लिखने के, एटिकेट्स की ट्रेनिंग दी गई है उसको। तो वो आपके बेसिस पर ईमेल के एटिकेट्स को फॉलो करते हुए आपको एक मेल लिख देता है। आप अगर उसको बोलिए राइट ए ईमेल फॉर रिमाइंडर ऑफ पेमेंट टू दी कस्टमर, कि कस्टमर को रिमाइंडर लिखना है, वो एक सिंपल सा रिमाइंडर मेल बना देगा आपको, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि हमने तो 4 लाइन लिखी, लेकिन वो तो उसने तो हमको रिस्पॉन्स करीबन मान लीजिए 100-150 वर्ड्स में दे दिया, 100 to 50 वर्ड्स में उसने हमें रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। आई होप यू फाइंड दिस मेल वेल, ये लाइन कभी सुनी है, पढ़ी है? जब भी आपको ये लाइन मिले किसी भी ईमेल में, समझ जाना है इसने चैट जीपीटी से मेल लिखवाई है। ट्रू, इट इज वेरी ट्रू। आप जब भी चैट जीपीटी से बोलो कि मेल लिखो, पहली लाइन लिखेगा आई होप यू फाइंड दिस मेल वेल। चैट जीपीटी के आने से पहले मैंने ये लाइन कभी किसी की मेल में नहीं देखी थी, ठीक है। एनीवे, ये एक बेसिकली एक वेलकम का एक एटिकेट है, उसको सिखाया गया है कि भाई जब भी किसी को मेल भेजो तो पहले ये उसके भले और अच्छे के बारे में बात कर लो, कि अच्छे हो, ठीक हो, ये उसको सिखाया गया है। इट वाज जस्ट अ ट्रेनिंग। आगे उसके जो कंटेंट हैं, उसने अपने डेटाबेस से पढ़ा कि भाई रिमाइंडर भेजने के लिए हम क्या क्या चीज़ें लेते हैं, तो उसने अपने डेटाबेस में रीड किया और उसने आपको रिस्पॉन्स जनरेट करके प्रोवाइड कर दिया। अब आप इसको लिखिए राइट ए सेकेंड रिमाइंडर, तो सेकेंड रिमाइंडर लिख देगा। आप उसको लिखिए write the reminder mail in harsh word. It will write because it has been trained to write with a harsh word, harsh language में आपको ये रिस्पॉन्स देगा। तो पॉइंट यहां पर ये है हमारा बताने का कि चैट जीपीटी एक जेनरेटिव एआई का टूल है। ये जेनरेटिव एआई क्या करता है, आपके रिस्पॉन्स को जनरेट करता है। इस वर्ड को, जनरेट वर्ड को बिल्कुल एकदम दिमाग में आप बैठा के रखिएगा। अभी हम आपको एग्जांपल्स दिखाएंगे, देन यू विल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट जनरेटिव वर्ड। गॉट इट? अब यहां पर दूसरा जो क्वेश्चन सबसे बड़ा आता है सभी के माइंड में, कि जीपीटी, चैट जीपीटी के आने से पहले हमारी रिलायबिलिटी किस पे होती थी, हम किस पे भरोसा करते थे? एक बाबा जी हुआ करते थे, गूगल बाबा के नाम से जानते थे जिसे। लेकिन चैट जीपीटी के आने के बाद लोगों ने गूगल बाबा की तरफ देखना कम कर दिया। व्हाई? गूगल
और चैट जीपीटी अगर हमें यूज करना है तो दोनों का डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू. When we talk about the Google search engine is also having a huge database, but it works on indexing method. Indexing method का मतलब होता है आपने उसको कीवर्ड दिए और कीवर्ड के बेसिस पे उसने पूरे वर्ल्ड वाइड वेब में उस कीवर्ड को डाला और उसको इंडेक्स करके सारे रिस्पॉन्स पेज वाइज लेकर के आ गया. अब आपको करना क्या है गूगल में, आपको जब जो भी आपसे रिलेटेड कंटेंट है, आप वेरियस उसने लिंक्स प्रोवाइड कर दिए कि ये कीवर्ड किस किस वेबसाइट में या किस किस पेज में पड़े हुए हैं, उसने कीवर्ड को उठा करके आपके सामने दे दिया. नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू ओपन एवरी लिंक, आइडेंटिफाई विच लिंक कंटेंट इज बेटर, विच लिंक कंटेंट इज यूजफुल फॉर यू और नॉट. आपको उसको एक एक लिंक को ओपन करके देखना पड़ेगा, उसमें से कॉपी करना पड़ेगा, कुछ एडिट करना पड़ेगा, देन यू विल बी इन पोजिशन टू यूज इट. गॉट माई पॉइंट. बट इन केस ऑफ चैट जीपीटी क्या है, जेनरेटिव है. जेनरेटिव मींस इसके पास भी डेटाबेस है, लेकिन ये आपको क्या करता है, अपने डेटाबेस और ट्रेनिंग मॉडल के बेसिस पर आपको रिस्पांस जनरेट करके प्रोवाइड कर देता है. इट प्रोवाइड यू रिस्पांस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ट्रेनिंग मॉडल. ट्रेनिंग जो उसको दी गई है, इट जनरेट्स द रिस्पांस. सो नाउ व्हाट हैपेंड आफ्टर द चैट जीपीटी के आने के बाद सबसे बड़ा चेंज क्या आया, व्हेन वी आर लुकिंग फॉर एनी पर्टिकुलर थिंग, कि जैसे अगर हमको कोई एक लेटर लिखना है, लेटर फॉर एडजॉर्नमेंट ऑफ हियरिंग, तो हमने गूगल पे डाला तो गूगल ने अपने 300 पेजेस के रिस्पांस दे दिए कि ये हियरिंग के एडजॉर्नमेंट करने के टेम्पलेट्स अलग अलग साइट पे पड़े हुए हैं, वो दे दिया. जबकि चैट जीपीटी में हमने डाला ये, तो उसने क्या किया, एडजॉर्नमेंट का एक लेटर जनरेट करके आपको प्रोवाइड कर दिया. दैट मे बी करेक्ट और मे नॉट बी करेक्ट, वी विल डिस्कस हाउ इट वर्क्स. तो यहां पर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, अगर आपको यहां पर जनरेट रेडीमेड रिस्पॉन्स चाहिए, रेडीमेड इंफॉर्मेशन चाहिए, देन यू नीड टू लुक इनटू द चैट जीपीटी. आई होप यू गॉट माय पॉइंट. ठीक है, तो ये सबसे बड़ा एक डिफरेंस यहां पर आता है चैट जीपीटी का, कि चैट जीपीटी या जो भी जनरेटिव एआई, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी टूल दैट इज चैट जीपीटी और वॉट एवर, यू कैन यूज एनी टूल, कोपायलट, गूगल जेमिनी, क्लाउड एआई, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन यूज. तो ये मल्टीपल आपके प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप किसी को भी यूज कर सकते हैं. तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इंटेलिजेंस में यहां पर जैसे हमने आपको बोला एक नैरो एआई, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. वन इज द नैरो एआई और वीक एआई दैट वी वर यूजिंग फॉर पर्टिकुलर टास्क. आज से पहले हम लोग जीमेल जब यूज करते थे, आपने देखा होगा सर्टेन टाइप्स ऑफ मेल्स आर गोइंग ऑटोमेटिकली इनटू योर स्पैम बॉक्स, जा रही हैं. कुछ मेल ऑटोमेटिकली आपके प्रमोशन वाले बॉक्स में चली जाती हैं, कुछ ऑटोमेटिक अपडेट वाले इंफॉर्मेशन बॉक्स, जो जीमेल में अपडेट, प्रमोशन, अलग अलग टैब बने हुए हैं. हाउ इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ वीक एआई, नैरो एआई. नैरो एआई के बेसिस पे क्या उसको ट्रेनिंग दी गई कि इफ ईमेल कंटेन्स these keywords, filter those emails and transfer that email to the spam box. So this is a type of artificial intelligence. On the basis of training given, the mail spam filter is working and transferring automatically those types of mails into your spam box. General AI और strong AI, that is under development. जर्नल एआई जो है वो अभी अंडर डेवलपमेंट में है. जैसे अभी हम लोग बात करते हैं ड्राइवरलेस कार की, तो ये सब चीज़ें आने वाले समय में आएंगी. ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ये हमें मशीन लर्निंग होगा, डीप लर्निंग, नेचुरल, ये सारे टॉपिक्स हैं. ये हम लोग जब आप लोग अगर सर्टिफिकेट कोर्स जो ICI का है वो करेंगे तो वहाँ पर आपको डिटेल में बताया जाएगा. बट आज के कंटेंट से बहुत रेलिवेंट नहीं है. हम लोग यहाँ पर जैसे एक बात करते हैं रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, RPA. हैव यू एवर हर्ड अबाउट दिस वर्ड, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन हम सब यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं. अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं इनकम टैक्स फाइलिंग का, तो आपने देखा होगा आपने एक बटन क्लिक किया अपलोड, और उसने जाकर के इनकम टैक्स की साइट पे ऑटोमेटिक लॉगिन किया, लॉगिन करके जेसन अपलोड करी, अपलोड करते ही सीधे आपको OTP वाला बॉक्स दिखा दिया. So that is the robotic process automation, where the certain task has been automated on the basis of certain flow or certain rules. That is the RPA. ठीक है, so we will use the today's session for generative AI. Generative AI में हम लोग बात कर रहे थे कि ये हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ब्रांच है. इट हैज़ कैपेबिलिटी टू जनरेट सर्टेन इंफॉर्मेशन, रिस्पॉन्स, रिकॉर्ड्स एटसेट्रा. सो इट हैज़ कैपेबिलिटी टू जनरेट द इमेज. आपने देखा होगा कि कई सारी आजकल AI वाली इमेजेस आ रही हैं. दैट इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ जनरेटिव AI. इट कैन जनरेट द इमेज. अगर आप अभी एक
उसको एक कीवर्ड दीजिए और उसको बोलिए कि जनरेट एन इमेज ऑफ डांसिंग पैरट, इट कैन जनरेट बिकॉज इट हैज़ कैपेबिलिटी। इमेजिन नहीं करना है उसको, उसके पास पैरट है, डांस है, उसने दोनों को मिलाया और पैरट को डांस करवा दिया, इट कैन डू। ठीक है, टेक्स्ट जनरेशन, इट हैज़ कैपेबिलिटी ऑफ जनरेटिंग द टेक्स्ट, टेक्स्ट जनरेट कर सकता है। तो टेक्स्ट कैसे जनरेट करता है? ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेनिंग मॉडल्स, उसको मॉडल्स में ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है, ऑन दैट बेसिस इट जनरेट द टेक्स्ट। तो अभी जैसे आपने कहा राइट ए मेल फॉर एडजॉर्मेंट या राइट ए मेल फॉर रिमाइंडर ऑफ पेमेंट, तो रिमाइंडर उसने क्या कीवर्ड पकड़े? रिमाइंडर देना है, मेल लिखनी है, तो मेल का फॉर्मेट का उसको एक मॉडल दिया गया है कि भाई मेल इस तरीके से लिखी जाती है। रिमाइंडर वर्ड उसको मिला, रिमाइंडर वर्ड से उसने क्या पकड़ा कि क्या चीज़ उसको रिमाइंड करनी है, वो उसने अपने पास डेटा सेट से उठा करके प्रोवाइड कर दिया। इट कैन ऑल्सो जनरेट द म्यूजिक एंड वीडियो जनरेशन। आपने शायद देखा हो कि एआई के वीडियोस भी बहुत सारे मार्केट में आने लगे हैं जो एआई बेसिस पे बनाए जाते हैं। ठीक है, सो जनरेटिव एआई के जो बेसिक वर्किंग है वो कैसे काम करती है? ऑन द बेसिस ऑफ डेटा कलेक्शन। तो देयर आर हैविंग सर्टेन डेटाबेस। तो गूगल के पास अपना डेटाबेस अवेलेबल है, मेटा के पास भी डेटाबेस अवेलेबल है, और जो आपका ओपन एआई है जिसने चैट जीपीटी बनाया है, दे हैव ऑल्सो अ ह्यूज डेटाबेस ऑन द बेसिस ऑफ दे प्रोवाइड द रिस्पॉन्स। सो फर्स्ट ऑफ इज database collection. If you want to make your own generative AI tool, you can also make it. आप भी खुद अपना जनरेटिव एआई बना सकते हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे। आप चैट जीपीटी के प्लेटफॉर्म पे भी प्रिपेयर कर सकते हो खुद का जनरेटिव एआई टूल। से फॉर एग्जांपल, आप अगर चाहते हो कि आपके ऑफिस में या आपके किसी क्लाइंट के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं या कोई आपको चैटबॉट बनाना है किसी कस्टमर सपोर्ट के लिए, तो सिंपली उसको आप क्या करिए, सारे डेटा प्रोवाइड कर दीजिए कि किस तरीके के क्वेश्चन पे क्या आंसर देना है, किस कीवर्ड पे क्या रिस्पांस देना है, आपका चैटबॉट रेडी हो जाएगा। तो दैट कैन बी डन। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज कलेक्शन ऑफ डेटा, सेकंड इज मॉडल ट्रेनिंग, एंड थर्ड इज जनरेटिंग द आउटपुट। तो ये आपका मॉडल ट्रेनिंग और डेटा के बेसिस पर आपको आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। यस, How to integrate traditional AI with generative AI? How to integrate? sir, actually generative AI is an AI, but it has difference with the capabilities of output. So it generate the text, it generate the images. Okay, so whatever the AI working is depends upon the model, how you train the model. आप किसी मॉडल को ट्रेन कैसे करते हैं? आप में से कई लोगों ने एयरपोर्ट पे डीजी यात्रा से चेक इन किया है। आपका डीजी यात्रा जो है, इनका जो पोर्टल है, प्लेटफॉर्म है, उसने आधार से आपका पूरा फेस का रिकॉग्निशन का डेटा अपने पास ले लिया। जब आपने डीजी यात्रा के उस ऐप से लॉगिन किया तो आपका फेस उसने रिकॉग्नाइज किया, आपके आधार नंबर से वैलिडेट किया कि हाँ अगर आपका ही फेस है, आप किसी और के फेस पे वो करेंगे तो आपको कैप्चर नहीं करेगा। तो उसने क्या किया, उसके पास एक डेटा सेट अवेलेबल है कि मान लीजिए मैंने अपने आधार से ऑथेंटिकेट किया, उसने पता किया कि हिमांशु की ये फेस ऐसी बनी हुई है। ठीक है, फेस का उसके पास पूरा डिज़ाइन है। दूसरा उसने किया कि जब मैं पहुंचा तो उसने मेरा स्कैनिंग किया, स्कैन करके उसने क्या निकाला, मेरे फेस के कंटेंट्स को आइडेंटिफाई किया और उसके पास जो डेटाबेस है उससे उसने मैच करना चालू किया, मैच करके आपको रिस्पॉन्स दिया। तो बेसिकली एआई इज ओनली अ मॉडल कि आपके मॉडल को ट्रेनिंग किस तरीके से दी है। नाउ हाउ इट वर्क्स ऑन द रिस्पॉन्स। इफ इट इज केपेबल ऑफ जनरेटिंग द रिस्पॉन्स, इट बिकम्स अ जनरेटिव एआई। इफ इट इज यूज्ड फॉर रोबोटिक प्रोसेस, इफ इट इज यूज्ड फॉर रोबोटिक्स, कि जहां पर आपने देखा होगा कि आपके बड़े बड़े प्लांट में रोबोट्स लगे हुए, उनको कुछ टास्क प्रोवाइड कर दिए गए कि ये काम करना है, तो एआई के बेसिस पे वो काम करते हैं सर। ठीक है, सो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आया कि चैट जीपीटी के बाद हम लोगों ने एआई के बारे में सोचना स्टार्ट किया। तो चैट जीपीटी को एक बोला जाता है इट इज अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल। चैट जीपीटी इज लार्ज लैंग्वेज मॉडल एंड इट इज डेवलप्ड बाय एन ओपन एआई। ओपन एआई इज बेसिकली अ ट्रस्ट और एक तरीके का एनजीओ है विच इज बैक्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड अदर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। कई सारे लोगों ने इसको बैक किया है, फंडिंग करी है, जिसके बेसिस पे वो काम करता है। इसने स्टार्ट किया था 2015 से अपना काम, बट 2015 के बाद इसने अपनी वर्किंग स्टार्ट करी और 2018 पे उसने पहला मॉडल बना करके तैयार किया था। उसके बाद ये मॉडल पब्लिक रिलीज के लिए नहीं आया, इंटरनल उन्होंने यूज़ किया। फर्स्ट टाइम दे केम इन 2022, तो 2022 नवंबर 2022 में फर्स्ट इन्होंने अपना वर्जन रिलीज किया, जहां पर लोगों के लिए एकदम नई चीज़ हो गई कि ये तो एकदम फिनोमिनल थिंग है
क्योंकि हम पहले गूगल में कोई चीज़ सर्च करते थे, गूगल से ढूंढ के रिस्पॉन्स लाते थे। अगर आज आपको कोई एक फॉर्मूला देखना है कि अगर आपके सामने डेट लिखी है DDMMYY, आप चाहते हो कि इस डेट में से हम डे निकाल दें कि इस डेट पे कौन सा दिन था, तो आप गूगल पे डालोगे, सर्च करोगे, फॉर्मूला लिखोगे कि भाई मुझे इसका फॉर्मूला दो, वो आपको फॉर्मूला कहीं ना कहीं मिल जाएगा कि डेट से डे निकालने का फॉर्मूला क्या है। यू विल गेट इट फ्रॉम द गूगल। आप चैट जीपीटी को लिखो, अब अच्छा आपको करना पड़ेगा, गूगल फॉर्मूला देगा तो फॉर्मूला आप एक्सेल पे जाके लिखोगे, फिर लिख करके आप उसका लिंक सेट करोगे कि भाई मेरा किस कॉलम में क्या कंटेंट है, आप तब उसको यूज कर पाओगे। अगर आपको ये चैट जीपीटी में यूज करना है तो सिंपल है, कैसे यूज कर पाओगे? आप चैट जीपीटी में लिखो इन कॉलम A12 आई हैव अ डेट, I want to identify the day of that particular date. Give me a formula. Now it will give you an exact formula which you can copy from the ChatGPT and paste to that Excel file, and you will get direct result without any manual exercise. So there is a huge difference because it has capability to generate. ये कैपेबिलिटी क्या है? जनरेट कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट्स प्रोवाइडेड बाय यू, डेटाबेस अवेलेबल विद देम एंड मॉडल ट्रेनिंग गिवन टू देम। सो चैट जीपीटी के आने के बाद यहाँ पर हमारा जो डे टू डे वर्किंग है बहुत चेंज हो गया, और उसके बेसिस पर यहाँ पर हम लोग काफ़ी डे टू डे एक्टिविटीज़ में इसका हम यूज़ करने लगे। तो सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं व्हाट आर द कैपेबिलिटीज़ ऑफ एनी generative AI tool when we use in our office, how we can utilize its capability for our day-to-day practice. I will demonstrate with the live use cases. So when we talk about the capabilities, it is a generative and creative informative text. ये आपको text generate करके दे सकता है, and I will show you what kind of text it can generate. Translate language effectively, just simply write any content in language which it support. अगर आपको हिंदी आती है आप हिंदी में लिखो और उसको बोलो translate in English. It can translate in English. Answer question based on its training data. आपने इससे क्वेश्चन पूछा और उसके बेसिस पर आपको ये आंसर देगा। अगर आप इससे क्वेश्चन पूछो कि give me 5 strategies for tax planning, ये आपको आंसर दे देगा कि भाई टैक्स प्लानिंग की 5 स्ट्रेटजीज ये हो सकती हैं। आप इसको क्वेश्चन पूछो गिव मी 5 स्ट्रेटजीज फॉर टैक्स इवेजन, ये आपको आंसर नहीं देगा बिकॉज इसको ट्रेनिंग दी गई है कि किसी भी इलीगल अनएथिकल क्वेश्चंस के रिस्पॉन्स नहीं देने हैं। लेकिन अगर आप इससे ये क्वेश्चन पूछो हाउ कि बाय व्हाट मीन्स वी कैन avoid to use the tax evasion, what are the means which we should not use for tax evasion, it can answer you. Let us see, we will अभी देखेंगे इसको। so ये आपके क्वेश्चन का आंसर देगा ट्रेनिंग डेटा के बेसिस पर। राइट कोड्स, जो प्रोग्रामिंग है उसके बारे में पूरे कोड भी लिख सकता है, बट ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा कोड लिख ही देगा। अगर आपको इसकी यूज पता है, इसकी कैपेसिटी पता है, देन यू कैन यूटिलाइज इट फॉर योर टाइम सेविंग। सो जब आपका चैट जीपीटी आपका काम कर देता है तो बोलते हैं ना बहुत मस्त काम करता है, और आप जब यूज करोगे बिल्कुल ऐसे ही आपको फील आएगा कि क्या मस्त काम करता है। एनीवे, देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस। लिमिटेशंस की अगर हम बात करते हैं तो लिमिटेशंस क्या क्या हो सकती हैं? आपको इनएक्यूरेट और बायस्ड इन्फॉर्मेशन दे सकता है। नीचे इन्होंने अपना डिस्क्लेमर भी दे रखा है कि भाई आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है यू कैन वेरीफाई फ्रॉम योर ओन सेंस। ठीक है, लिमिटेड नॉलेज ऑफ रियल वर्ल्ड इवेंट्स। चैट जीपीटी जो है, हम लोग कह रहे हैं चैट जीपीटी तो हम इंटरनेट पे यूज करते हैं, बट चैट जीपीटी इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द इंटरनेट। डू यू नो इट? चैट जीपीटी इज अपडेटेड अप टू अक्टूबर 23। चैट जीपीटी का जो डेटाबेस है वो अक्टूबर 23 तक का अपडेटेड है। इसके बियॉन्ड जो डेटा है वो अभी चैट जीपीटी में अपडेटेड नहीं है। तो ये रियल वर्ड्स, अब क्वेश्चन आता है सर इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, इट मीन्स क्योंकि इसको डेटा रियल टाइम बेसिस पे नहीं मिल रहा, डेटा का एक डंप उसके पास रखा हुआ है और वो अपना जो क्वेश्चन आप पूछते हो वो उसी डंप नॉलेज में जाकर के देखता है। वो इंटरनेट की गूगल की तरह अलग अलग पेजेस पे जाके सर्च नहीं करता है। हालांकि अभी इसके अंदर इसने कैपेबिलिटी दे दी कि सर्च फ्रॉम वेब ऑल्सो, तो वो सर्च फ्रॉम वेब का भी फीचर अगर आप ऑन कर देते हो तो वो आपको वेब से भी रिजल्ट दे देता है। मे लैक कॉमन सेंस एंड रीजनिंग एबिलिटीज, जो मैंने भी आपको क्वेश्चन बताया, आप इससे पूछते हो अगर कि 5 टैक्स इवेजन के क्या हो सकते हैं मूल्स, तो
तो वो आपको आंसर देगा नहीं मैं टैक्स इवेजन प्रमोट नहीं करता हूं, ये आंसर नहीं दे सकता हूं। आप इसलिए अगर ये क्वेश्चन करो कि ऐसे कौन से वेज हैं जो टैक्स इवेजन के लिए नहीं करने चाहिए, तो ये आपको वही आंसर दे देगा। तो यहां पर क्या है, कॉमन सेंस इसके पास नहीं होगा, जो डेटा है ट्रेनिंग है उसके बेसिस पे आंसर प्रोवाइड करता है। सर AI and sir, robotics is basically a different science. Robotics is a different science. Robotics में जो कैपेबिलिटी है, माइंड है, उसको हम AI के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एक तरीके से समझिए रोबोटिक्स एक शरीर है, जैसे हमारा बॉडी है एंड माइंड हमारा यहाँ पे है। तो माइंड से हम काम करते हैं, लेकिन फिजिकल काम करने के लिए हाथ पैर चलाने पड़ते हैं, लेकिन वो सिग्नल कौन देता है, माइंड देता है। इन द सेम मैनर रोबोटिक्स में रोबोटिक टास्क को करने के लिए AI का यूज किया जाता है। तो AI विल वर्क एज अ माइंड फॉर द रोबोटिक्स। कैन समथिंग स्ट्रगल विद द कॉम्प्लेक्स टास्क, सर्टेन आप कुछ कॉम्प्लेक्स टास्क पे हो सकता है वो आपको कह दे सॉरी आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म। तो यहाँ पर आपको गारंटी नहीं है कि आपको ये रिस्पॉन्स सही दे दे। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ दैट इज़ वेरी ट्रू। आज की डेट में जो यंग एज लोग हैं वो क्या करते हैं, चैट जीपीटी, हर चीज़ के लिए चैट जीपीटी पे डालते हैं और रिस्पॉन्स ले आते हैं। यूएस में एक लाइव रियल केस है, आप गूगल पे सर्च करिएगा, फोर्ब्स में पब्लिश हुआ है, रियल केस था। वन ऑफ द एडवोकेट इन यूएस यूज्ड द चैट जीपीटी फॉर राइटिंग द केस रिस्पॉन्स। केस प्रिपेयर करने के लिए उसने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया। उसने कहा कुछ केस लॉ दे दीजिए, ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा कि भाई कई बार होता है ना, हम लोग लिखते हैं कि केस लॉ लिख देंगे तो सामने जो ऑफिसर है या जज है उसके ऊपर एक इंप्रेशन पड़ेगा कि नहीं पीछे केसेस में ऐसा ऐसा डिसाइड हो चुका है, तो थोड़ा इंप्रेशन पड़ता है। इफ वी राइट एनी रिप्लाई विद द केस लॉ, सपोर्टिव केस लॉस, सपोर्टिंग में अपने केस लॉस। तो उसने कहा चैट जीपीटी से बोला कि सर्टेन केस लॉ प्रोवाइड विद फॉर दिस 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 फैक्ट, इस मैटर के लिए कुछ केस लॉस दो। चैट जीपीटी ने केस लॉ जनरेट कर दिए। प्लीज माइंड दिस वर्ड, चैट जीपीटी ने केस लॉ जनरेट कर दिए। कैन यू इमेजिन, जनरेट करने का मतलब दे वर एक्चुअली नॉट एग्जिस्टिंग, वो एग्जिस्ट करते ही नहीं थे, और उसने क्या किया, जनरेट कर दिया। अच्छा, जब कोर्ट में केस पहुंचा तो अब जज भी जो था वहां पर वो भी पढ़ते हैं, भाई कौन सा केस लॉ है, रेफर करो जरा, कहां पे लिखा है, मिला ही नहीं, वो केस लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो फिलहाल उस कोर्ट ने उस एडवोकेट की जो उसकी सीपी या उनके यहाँ जो भी बोलते होंगे लाइसेंस है, उसको सरेंडर करने का रिकमेंडेशन दे दिया, ताकि ये एक लोगों के लिए मिसाल बन जाए कि नहीं इतना भी एआई का यूज नहीं करना है। ठीक है, सो यहां पर इसकी जो कैपेबिलिटीज है, तो मैंने आपको इसीलिए मैंने बोला बिफोर गोइंग टू द एक्चुअल यूज केस हम पहले ये जान लें कि ये क्या कर सकता है। हम आंख बंद करके किसी चीज पे रिलाई करें, ऐसा नहीं है। मैं अगर कई बार मैं अपने प्रैक्टिकल में अपना बताऊं कि मुझे अगर कोई ड्राफ्टिंग करनी है, कोई रिस्पॉन्स बनाना है, कोई चीज़ का कोई कंटेंट तैयार करना है, आई यूज़ द चैट जीपीटी। बट मुझे अगर कोर्ट के केस रेफर करने में, मैं चैट जीपीटी से बोलता ही नहीं हूँ कि रिस्पॉन्स मुझे केस लॉ दो। मैं फिर गूगल पे सर्च करता हूँ केस लॉस, कि भाई मुझे इसके केस लॉस गूगल पे। तो गूगल पे सर्च करने पे क्या होगा, देखिए गूगल क्या करता है, गूगल नेवर जनरेट, इट प्रोवाइड्स फ्रॉम एनी सोर्स। गूगल खुद का सोर्स नहीं है, गूगल में अपना कुछ भी नहीं है, गूगल का कुछ भी नहीं है। आप गूगल के साइट पे जाएंगे तो गूगल आपको किसी ना किसी दूसरी साइट का रेफरेंस देता है कि भाई इस साइट पे ये डेटा अवेलेबल है, इससे कंटेंट मैचिंग कंटेंट अवेलेबल है, यू कैन यूज इट। तो जब भी आपको यूज करना है कहीं केस लॉ, तो आप किसी रिनोन्ड साइट पे जो केस लॉ पब्लिश्ड हैं आप उनको उठाइए, उनका यूज करिए, रेदर देन taking the case law from the any generative AI tool, because it has capability to generate। तो ये आपको कुछ भी जनरेट करके दे सकता है, एंड यू कांट इमेजिन कि आपको क्या दे दिया इसने। सो हम लोग अगर बात करते हैं यूज केसेस की, नाउ कमिंग टू द यूज केस, जहां पर हम लोग प्रैक्टिकल चीजें डिस्कस करेंगे, दैट ड्राफ्टिंग रिपोर्ट्स, ईमेल एंड लीगल डॉक्यूमेंट्स। Now, if you want to draft any report, you can use the chat GPT for report drafting, email drafting. Email आपने use किया होगा. But before going to the actual drafting, I just want to show you the capabilities of the chat GPT. First of all, let us ask a question. Who are you and how you works? मैंने इससे क्वेश्चन पूछा कि भाई कौन हो तुम और कैसे काम करते हो। ठीक, इट इज आंसरिंग
I can understand and generate. Text understanding and generation. I have knowledge base. Tool access, I have certain tools that I can use. So you have, अभी आपको फर्स्ट पिछले लास्ट सेशन में ऋषिर ने दिखाया था कि PDF अपलोड कर दिया, PDF अपलोड कर दिया और PDF से रिस्पॉन्स लेकर के वो आ गया जो आपको बता दिया कि इस पेज पे डायरेक्टर की इंफॉर्मेशन दी है. तो ये क्या है? इट इज यूजिंग अ टूल OCR. OCR टेक्नोलॉजी होती है जहां पर ऑप्टिकल जो हम लोग रीड कर लेते हैं उसको रीड करने का काम करता है. कस्टमाइजेशन एंड मेमोरी एंड इंटरेक्टिव असिस्टेंस. इंटरेक्टिव असिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? इट कैन इंटरैक्ट. नाउ इफ यू वांट टू यूज एनी जनरेटिव AI टूल जहां पर कन्वर्सेशन की कैपेबिलिटी है, आप इसको यूज कर सकते हो. कैसे? जैसे आप समझ लीजिए कि व्हेन वी टॉक टू ए चिल्ड्रन, जब भी हम किसी बच्चे से बात करते हैं तो जैसे हम बच्चे से बात करते हैं आप समझ लो कि वैसे ही अगर इससे हमने बात करना सीख लिया. इफ यू स्टार्ट लर्निंग हाउ टू टॉक विद द चिल्ड्रन एंड इन द सेम मैनर यू नीड टू टॉक टू ChatGPT और एनी जनरेटिव AI टूल, तो यू विल गेट मच मोर बेटर रिजल्ट्स. मैं आपको आज ये दिखाने वाला हूं कैसे इससे हम लोग बात कर सकते हैं. मैंने इससे पूछा कि भाई कैसे काम करते हो, आंसर दे दिया इसने. ठीक है, व्हाट इज योर डेटाबेस अपडेट लास्ट, कि आपका लास्ट डेटाबेस कब अपडेट हुआ था. सो नाउ इट इज गिविंग माय नॉलेज. इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू और शुड आई इंक्रीज? इज इट ओके? सो इट इज शोइंग माय लास्ट नॉलेज अपडेट वाज अप टू October 23. तो ये October 23 तक ये अपडेटेड है. October 23 के बाद जो इवेंट्स हुए हैं वर्ड में उससे ये अनजान होगा. ठीक है, सो इट इज ओके. Now, I have already told you that it is a generative AI. It has capability to generate. So, मैं इसको एक टास्क देता हूं. मैं इसको बोलता हूं राइट ए शायरी. लिखेगा कि नहीं लिखेगा? मैंने इसको बोला है कि एक शायरी लिखो, राइट ए शायरी. कैन यू इमेजिन, ये जो शायरी इसने लिखी है, इसने ये शायरी, आप इस शायरी को गूगल पे कहीं सर्च करोगे कहीं नहीं मिलेगी. बिकॉज इट हैज जनरेटेड. इसने क्या किया? जनरेट किया. अब इसको मैं थोड़ा बोलता हूं. अब नाउ हाउ टू कन्वर्सेशन, स्टार्ट कन्वर्सेशन इट विद इट. मैंने कहा भाई आपने दिल की रिश्तों की दूरियां उरियां बता दिया है. मैं इसको लिखता हूं, थोड़ा और अच्छा लिखो. राइट ए मोर लवली शायरी फॉर वाइफ. मैंने कहा भाई वाइफ के लिए लिखनी है. तो उसने बताया सुबह से शुरुआत हो गई है, ठीक है, शाम तक सजी रहेगी. तो यहां पे उसने लिखा. नाउ मैंने कहा नहीं अभी भी मजा नहीं आ रहा है, एक काम करो, राइट ऑन चांद. चांद भी लिख दो. अच्छा ठीक है. सो नाउ व्हाट इट इज डूइंग, चांद से भी हसीन तुम्हारी. सो व्हाट आई वांट टू शो यू, आई वांट टू शो यू इट्स कैपेबिलिटीज ऑफ जेनरेटिंग. ये इसकी क्या है? इसकी एक कैपेबिलिटी है कि ये जनरेट कर सकता है कुछ भी, जो भी आप कीवर्ड इसको प्रोवाइड करते हो. आप में से किसी ने वर्ड सुना है प्रॉम्प्ट? हैव यू एवर हर्ड इट? प्रॉम्प्ट सुना होगा आप सबने. सबने नहीं सुना होगा, बाकी सब लोग सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूं. प्रॉम्प्ट क्या है? एक वर्ड आपको सुनने को मिलेगा ChatGPT या जितने भी AI टूल यूज करते हैं जनरेटिव AI के. प्रॉम्प्ट इज अ टाइप ऑफ ए कमांड. एक कमांड हम देते हैं, वर्बल या रिटन कमांड, कि ये काम करो. तो प्रॉम्प्ट इज बेसिकली एन इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ टूल. जनरेटिव AI टूल को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये कमांड आप लो और इस पे हमें रिस्पॉन्स दो. तो यहां पर आप सबने देखा कि इसकी जो कैपेसिटी है वो क्या है. नाउ अब शायरी वायरी हो चुकी है, थोड़ा मूड अब लाइट हो गया है, तो हम लोग चलते हैं अपनी रिपोर्ट्स की तरफ. नाउ नहीं, ये सब जरूरी होता है ना सर, शुरुआत अच्छी होनी चाहिए. अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग अपना यूज केस डिस्कस कर रहे थे. पहला यूज केस, ड्राफ्ट अ रिपोर्ट. अब आपको आज की डेट पे सपोज करिए कि एक रिपोर्ट ड्राफ्ट करनी. रिपोर्ट कैसी? मान लीजिए आपके पास एक क्लाइंट आया और क्लाइंट ने आपको एक इंटरनल ऑडिट का एक टास्क दिया था और इंटरनल ऑडिट का टास्क मिल गया, आपने इंटरनल ऑडिट कर दिया. अब आप चाहते हो क्लाइंट को एक रिपोर्ट देना. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं?
अगर हमारे पास पहली बार काम आया है तो हमारे जो सीनियर्स हैं या तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं या हम किसी अपने फ्रेंड से मांगते हैं या गूगल पे कहते हैं कि इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट की कोई फॉर्मेट प्रोवाइड करो, ठीक है। नाउ इंस्टेड ऑफ आस्किंग फ्रॉम एनीवन, राइट हियर ड्राफ्ट अ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी। अगर मैं यहां पे देखिए, अब यहां पर पॉइंट आता है कि मैं जो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट ड्राफ्ट करने के लिए बोला हूं, मैंने कितना जेनरिक वर्ड लिखा है, ड्राफ्ट इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट ऑफ ए कंपनी। अगर मैं केवल इतना लिखूंगा तो ये क्या करेगा, एक जेनरिक रिस्पॉन्स देगा। अगर मैं इसको कुछ और कंटेंट प्रोवाइड करता जाऊंगा, इसमें क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट। अगर मैं इसको कुछ और कॉन्टेक्स्ट देता जाऊंगा तो इट विल गिव मी मोर प्रिसाइज, मोर एक्यूरेट, मोर रेलिवेंट रिजल्ट कंसीडरिंग अवर रिक्वायरमेंट। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इसको बोला ड्राफ्ट इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट शोइंग द, अब क्या मुझे क्या क्या मिला, शोइंग द इशू इन टैक्सेशन कंप्लायंस रिलेटेड टू जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट लैप्सेस, ठीक है, टीडीएस नॉन कंप्लायंसेस एंड पीएफ ईएसआई नॉन कंप्लायंसेस। ठीक है, इतना सफिशिएंट है, लेट्स सी द रिजल्ट। तो अब आप देखेंगे यहां पर इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट, पहले इसने दिया एग्जीक्यूटिव समरी कि भाई ये जो ड्राफ्ट रिपोर्ट बन रही है ये किसको रिलेट करती है, किस चीज के लिए है, स्कोप ऑफ ऑडिट उसने बताया, की फाइंडिंग्स एंड इशू आइडेंटिफाइड कि क्या क्या हमारी की फाइंडिंग्स हैं, ठीक है, क्या रिकमेंडेशन है, टीडी। अब देखिए यहां पर ऑडिट का, इंटरनल ऑडिट का काम केवल इशू बताना नहीं है, रिकमेंडेशन भी है। तो यहां पे देखिए रिकमेंडेशन भी दे रहा है कि भाई किस तरीके से आपको इसको रिकंसाइल करना है, टीडीएस की नॉन कंप्लायंस रिकमेंडेशन, पीएफ ईएसआई की नॉन कंप्लायंस एंड रिकमेंडेशन, एंड कंक्लूजन एंड एक्शन प्लान कि कंक्लूजन क्या है और एक्शन प्लान क्या है। सो नाउ व्हाट यू सी कि यहां पर अगर आपको ये यूज करना है तो अब आप इसके साथ कन्वर्सेशन करिए, आप अपना मोर प्रिसाइज कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करिए एंड यू विल गेट मोर प्रिसाइज रिजल्ट्स। तो आपको इसमें और भी बेटर रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, रिस्पॉन्स टू द नोटिस इशूड। नेक्स्ट यूज केस होगा हमारा रिस्पॉन्स टू द नोटिस इशूड। आपने नोटिस वाला अभी ये सुबह देखा होगा, जो देखा है मैं उससे थोड़ा सा उसका एक नेक्स्ट लेवल में आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि अगर आपको इससे नोटिस का रिस्पॉन्स लिखवाना है, देन हाउ यू शुड इंस्ट्रक्ट दैट टूल। अच्छा, मैं एक जस्ट आपको एक टिप देना चाहूंगा कि जब भी आप इसके साथ कन्वर्सेशन करें तो अगर आपका कोई पर्टिकुलर डिस्कशन कंप्लीट हो गया है और कोई नया चीज स्टार्ट करने वाले हैं तो ऑलवेज स्टार्ट अ फ्रेश चैट। यहां से आपको फ्रेश चैट मिलेगी, उसमें से आप ये ओपन फ्रेश चैट, न्यू चैट, बिकॉज ये क्या करता है आपके प्रीवियस कन्वर्सेशन की हिस्ट्री के बेसिस पे आपको रिस्पॉन्स देने लगता है। सो वेन एवर यू वॉन्ट टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक, न्यू डिस्कशन, ऑलवेज यूज न्यू चैट। ओके, तो यहां पर अब न्यू चैट जब लेंगे तो पीछे का कंटेंट इसका हट जाएगा। मैं इसको एक नोटिस पहले अपलोड कर देता हूं इसको कि भाई ये मेरी एक नोटिस है और उस नोटिस के बेसिस पे आपको I have just uploaded a notice. Can you imagine this notice is in Hindi and English mix. It is issued by the UP GST department. So it is a Hindi and English mixed notice. I have just it. Now, how to use that AI tool for our benefit? Writing replies to the notice. जब आपके पास कोई क्लाइंट, देखिए मेरा बस सिंपल सा एक सबमिशन है, जब हम जैसे अगर हम नॉर्मल तरीके से AI ना होता हम काम कैसे करते, वैसा काम करने के लिए अगर हम चैट जीपीटी या किसी भी टूल को बोलेंगे यू विल गेट फिनोमिनल रिजल्ट। लेकिन अगर हम उसको एकदम कुछ और तरीके से यूज करने लगेंगे, हमने सीधे नोटिस अपलोड करी बोला लिखो रिप्लाई, तो गलत हो जाएगा। तो हम जब भी हमारे पास कोई नोटिस आता है तो व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, सबसे पहले खुद तो पढ़ते हैं ना कि भाई क्या इश्यू है। तो हम यहां पर नोटिस अगर हमारे पास आया है, हम उस पर नोटिस अपलोड करेंगे और उससे बोलेंगे रीड द नोटिस
and give me the points on which notice is issued। मुझे नहीं पता कि क्यों नोटिस, मैं क्यों लिखूं कि डिमांड नोटिस है, मैं सिंपली लिखूंगा कि भाई नोटिस रीड करो और मुझे पॉइंट्स दो कि किस पॉइंट्स पर आपको ये नोटिस इशू की गई है। नाउ यू विल फाइंड इट इज स्टार्टेड राइटिंग द समरी ऑफ द नोटिस कि द नोटिस इशूड इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स कि क्या क्या नोटिस है, मिसमैच है आईटीसी का, रूल 42 43 का वायलेशन हुआ है और प्रीवियस ASMT 10 दी थी उसका कोई रिस्पांस नहीं दिया है और उसके बेसिस पर डिपार्टमेंट ने इतने की पेनल्टी, इतने का इंटरेस्ट, इतने की डिमांड यहां पर खड़ी कर दी है। ये आपको क्या मिल गया? मिल गया। नाउ अब हम क्या करते हैं, जब हमें पता चल गया कि क्या क्या इशू है तो हम नेक्स्ट स्टेप क्या लेते हैं? हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं कि भाई पॉइंट वाइज हमारा क्या क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो अगर हम सिंपली इसको कह दें, अब आप समझिएगा, अगर हम इसको लिख दें सिंपली राइट रिप्लाई टू दिस नोटिस, नाउ व्हाट इट विल डू, एनीबडी कैन टेल? अगर मैंने सिंपली इसको लिखा राइट रिप्लाई टू दिस नोटिस, ये कुछ भी कर सकता है। रिप्लाई नहीं पता कि क्या, मुझे नहीं पता। और एक चीज और मैं बता दूं, जब भी आप चैट जीपीटी या किसी भी जनरेटिव एआई टूल पे आप कोई क्वेश्चन डालेंगे, आप एक ही क्वेश्चन को 10 बार डालेंगे, वो 10 बार आपको अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंट वे में रिस्पॉन्स देगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैंने इससे एक दिन पूछा चैट जीपीटी से कि शाहरुख खान की मूवी के 10 डायलॉग बताओ, ठीक है, 10 फेमस डायलॉग्स बताओ। उसने पहले बार में 10 दे दिए जो शाहरुख खान को बिलोंग करते थे। मैंने कहा और 10 बताओ, तो फिर उसने और 10 निकाले, ढूंढे मेहनत करके भाई और कौन से 10 हैं। फिर तीसरी बार पूछा और 10 बताओ, तो उसने पुराने वाले थे फिर से दे दिए ऐड करके। मैंने कहा नहीं, पुराने वाले मत जोड़ो, नए जो भी एडिशनल है वो बताओ। उसके बाद 5वीं बार करने के बाद वो शाहरुख खान वाले देने के बजाय सलमान खान के देने लगा। नहीं, इट इज माई टेस्टेड, मैंने खुद टेस्ट किया, आप भी टेस्ट करिएगा इसको। सो मैंने आपसे बोला ना, इसकी कैपेसिटी है, जनरेट कर सकता है। अब यहां पर जनरेट करने की कैपेसिटी जब उसकी खत्म हो जाती है तो फिर ये आए बाएं साए देने लगता है रिस्पॉन्स। तो ये हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हम कॉन्टेक्स्ट क्या देने वाले हैं इसको और किस कॉन्टेक्स्ट में ये आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, एंड वेदर दोस कॉन्टेक्स्ट इज रेलिवेंट और नॉट। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब अगर मैं इसको बोलता हूं, देखिए मैंने इसको पहले भी इसको ये नोटिस अपलोड करी है, मैंने पहले से पूछा, सिंपली जब मैंने लिखा राइट रिप्लाई टू दिस नोटिस, बिलीव मी इसने आंसर क्या दिया। पहले पॉइंट जो लिखा है मिसमैच इन आईटीसी क्लेम्ड इन 3B and 2A, इसका उसने कई बार रिस्पांस दिया कि आईटीसी जो क्लेम करिए 3B and 2A में डिपार्टमेंट का कंटेंशन गलत है, हमने जो किया है वो सही है, इसलिए ये नोटिस ड्रॉप हो जानी चाहिए। सिंपल ये रिस्पांस दिया। आप इससे क्या सेटल होगा केस कि मैंने जो किया है वो सही है, डिपार्टमेंट गलत है? इतना लिख देने से क्या आंसर या रिप्लाई हमारा कंप्लीट माना जाएगा? आंसर इज नो। सो टू गेट अ प्रॉपर रिस्पॉन्स फ्रॉम दिस, देखिए इसका अब यूज क्या कर सकते हैं। अगर हमारे पास बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, या है भी, अगर है हमारे पास ड्राफ्टिंग, हम एक पेज का रिप्लाई लिखने में हमको लगेगा 10 मिनट, ये एक पेज का रिप्लाई लिखने में लेगा केवल 5 सेकेंड, फर्क है। लेकिन अब हम 5 सेकंड वाला रिप्लाई हमारे काम का नहीं है और 10 मिनट हम लगाना नहीं चाहते, या 15 मिनट लगेगा, टाइप करके लिखेंगे तो 15-20 मिनट लग जाएगा, ठीक है। नाउ इसके बीच का बैलेंस कैसे निकाला जाए? इसके बीच का बैलेंस निकालने के लिए हम जो जो चीजें चाहते हैं करना, कि आप ऐसे समझ लो कि आपका एक असिस्टेंट है, आपका एक कोई स्टाफ है, आपका कोई पार्टनर जो प्रैक्टिस करता है, नया सीए है जो आपके यहाँ एक सब लिखता है, रिप्लाई कर सकता है, आप उसको बताते हो कि इस तरीके से लिख लाओ। तो जो आप अपने स्टाफ को बताते हो कि इस तरीके से लिख लाओ, वैसा ही आप इसको इंस्ट्रक्शन दो, राइट इन दिस मैनर, इंक्लूड दोस पॉइंट, इंक्लूड दिस कंटेक्स्ट, देन इट विल गिव यू फिनोमिनल रिजल्ट। ओके, नाउ लेट मी शो यू। तो मैं यहां पर आपको दिखाता हूं, इसका मैंने कुछ एग्जाम्पल्स बना रखे थे। तो मैंने आपको यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा इससे कि भाई यहाँ पे इस नोटिस में क्या इश्यूज थे, क्या पॉइंट्स थे। तो यहाँ पे उसने हमको आंसर दे दिया। अब यहाँ पर जब भी नोटिस आता है तो हमको क्या करना है कि भाई जो फैक्ट्स हैं, जिस पॉइंट पे नोटिस इशू किया है, वेदर वी आर एक्सेप्टिंग इट और रिजेक्टिंग इट। अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हमारा रिप्लाई डिफरेंट बनेगा। अगर हम कह रहे हैं कि नहीं हाँ ये डिस्क्रिपेंसी है, मैं इस पर टैक्स डिपॉजिट करना चाहता हूँ, मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ। अगर इसमें मैं कहता हूँ नहीं हाँ डिपॉजिट करना है, लेकिन आपने नोटिस में इंटरेस्ट और पेनल्टी भी मांगी है, एज पर
सेक्शन 128A जो नया अभी इंट्रोड्यूस किया गया है 1 नवंबर से एप्लीकेबल है कि भाई आपका इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं लगनी है, तो हमको यहां पर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, देन इट विल गिव यू द एक्यूरेट रिजल्ट अकॉर्डिंग टू। तो मैं आपको यहां पर एक एग्जाम्पल लिख कर देता हूं। मैं पहला इसको देता हूं इंस्ट्रक्शन, ड्राफ्ट रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इशू with the confirmation that demand has been deposited by DRC 03 filed on so and so date with the detailed breakup of amount. Now मैंने इसको पूरा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड किया कि भाई क्या कर लो, ये नोटिस का जो रिप्लाई है इसको एक्सेप्ट कर, नोटिस में रिप्लाई में एक्सेप्ट करो कि जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, दीज डिस्क्रिपेंसीज आर आइडेंटिफाइड एंड वी एक्सेप्टेड। तो इसने अब देखिए क्या किया, वी वुड लाइक टू सबमिट एक्सेप्टेंस ऑफ द इशू, कंफर्मेशन ऑफ द पेमेंट वाई DRC 03 ऑन सो एंड सो डेटेड विद द ब्रेकअप, कि क्या क्या ब्रेकअप था, पूरा ब्रेकअप उसने प्रोवाइड कर दिया। अभी मैंने इसको केवल बोला कि हाँ एक्सेप्ट कर लो और डिपॉजिट कर रहे हैं, तो इसने इंटरेस्ट और पेनल्टी भी डिपॉजिट कर दी, यहां पर इंटरेस्ट और पेनल्टी भी डिपॉजिट कर दी। अब यहां पर 73 में एक प्रोविजन होता है कि भाई यहां पर अगर हम 30 दिन के अंदर पैसा जमा कर देते हैं तो पेनल्टी वेव कर देता है 73 में। तो यहां पे इसने लिख दिया रिक्वेस्ट फॉर वेवर ऑफ पेनल्टी, कि भाई 30 दिन के अंदर हम डिपॉजिट कर रहे हैं तो इसलिए हमारी पेनल्टी एक्सक्यूज की जाए, ना लगाई जाए। अब इसको हम दूसरा एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, कि बजट 2024 में जो इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर का जो गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दिया था उसको इनकॉर्पोरेट कर ले अपने रिप्लाई में। तो इसने क्या किया, पेमेंट की कंफर्मेशन करी और इसके बाद क्या किया, नीचे दे दिया रिक्वेस्ट फॉर वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, यहां पर उसने बजट 24 का रेफरेंस दे दिया। अब मैं इसके बजट 24 के बजाय मैं इंक्लूड कर दूंगा सेक्शन 128 एज नोटिफाइड बाई नोटिफिकेशन नंबर सो एंड सो यहां पर, तो वो अपने रिस्पॉन्स में क्या करेगा, उसको इनकॉर्पोरेट कर लेगा। ये तो बात हुई कि व्हेन वी वांट टू एक्सेप्ट इट, कि हमें एक्सेप्ट करना है। अगर हम ये कहते हैं कि नहीं मेरा जो रिप्लाई है उसको रीड्राफ्ट करो एंड आई वांट टू कंटेक्स्ट द डिमांड, एंड मैं उसको पॉइंट वाइज देता हूं कि किस पॉइंट के लिए क्या पॉइंट देने हैं आपको, क्या आपको कंटेक्स्ट करना है। तो मैंने इसको बोला रीड्राफ्ट द रिप्लाई, आई एम कंटेक्सटिंग द डिमांड। मैं डिमांड को कंटेक्स्ट करूंगा, क्यों, वाइल कैलकुलेटिंग द डिफरेंस बिटवीन 3B एंड 2A डिपार्टमेंट हैज इंक्लूडेड RCM ITC CGST 3,80,000 एंड इट क्लेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ 2A। तो उसने 2A और 3B की ITC का डिफरेंस दिया। तो मैंने बोला कि 3,80,000 रुपए की जो ITC है वो तो मैंने RCM में डिपॉजिट करी है, उसको 2A से क्यों मैच करा रहे हो। तो इस पॉइंट के बेसिस में डिमांड को क्या कर रहा हूं, कंटेस्ट कर रहा हूं। तो उसका रिस्पॉन्स फिर इस तरीके से बना देगा। फिर दूसरा पॉइंट था कि भाई आपने रूल 42, 43 का वायलेशन किया है। तो मैंने उसको बोला कि भाई मेरा टर्नओवर इतना था, इतना मेरा RCM, इतना मेरा एग्जेम्प्टेड टर्नओवर था, इतना टैक्सेबल टर्नओवर था, एंड ऑन द बेसिस ऑफ redraft the reply. So now you will see the difference. Grounds for contesting, point number 1 mismatch in 3B and 2A। तो यहां पर उसने इसका पॉइंट दे दिया कि भाई ये डिफरेंस है और ये इस तरीके से करेगा। पॉइंट नंबर 2 का डिसअलाउंस जो था वो उसने कंटेस्ट कर दिया एंड रिक्वेस्ट फॉर रीअसेसमेंट दी है। अब मैं इसको थोड़ा सा और बोलता हूं, रीड्राफ्ट इट विद टैबुलर कैलकुलेशंस। अभी उसने जो मैंने लिखा था कि ये 3,80,000 रुपए, तो उसने क्या किया, टेक्स्ट के फॉर्म में ही लिखता चला गया पूरा। अब मैं इसको बोलता हूं रीड्राफ्ट विद टैबुलर कैलकुलेशंस। तो अब ये रिप्लाई को रीड्राफ्ट करेगा एंड जो टैबुलर के फॉर्मेट में कैलकुलेशंस है वो अब दिखाएगा कि ITC एज पर 3B दिस, ITC एज पर 2A दिस, एंड देन डिफरेंस इतना है, लेस RCM ITC नॉट क्लेम नॉट रिफ्लेक्टेड इन 2A दिस। तो ये रिवाइज डिफरेंस इतना रहा। तो ये जो डिफरेंस है, बल्कि ये कह रहा है कि डिफरेंस जो है वो कैलकुलेशंस में कंसीडर नहीं करना है। इन द सेम मैनर जो 42 का जो कैलकुलेशन है, रूल 42 का, इसने यहां पर ये बताया कि भाई इतना इतना कैलकुलेशन 42 में होता है, इतना टैक्सेबल टर्नओवर, इतना एग्जेम्प्टेड टर्नओवर, नाउ रीअसेस। तो यहां पर पॉइंट आता है, आप क्या इंस्ट्रक्शंस देते हो, इट विल गिव द रिजल्ट इन दैट सेम मैनर। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अच्छा, एक पॉइंट मैं और इसमें ऐड करूंगा। अभी जैसे मैंने इसको रिप्लाई लिखा, मैं इसको बोलता हूं रीड्राफ्ट द रिप्लाई विद मैं इसको लिख रहा हूं रीड्राफ्ट द रिप्लाई विद हार्श लैंग्वेज। क्या लिखेगा, इट हैज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड।
अपना माइंड अप्लाई नहीं करेगा कि किसको आप देने जा रहे हो, वहाँ क्या होगा, व्यापारी जो बिजनेसमैन है वो आगे काम करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है इसने रिप्लाई, जब हमने इसको बोला हार्श वर्ड में लिखो, यहाँ पे उसने अपनी जो लिख दिया, यहाँ पे देखिए वर्ड लिख रहा है, डिपार्टमेंट हैज शॉकिंगली रेज्ड अनजस्टिफाइड बेसलेस डिमांड। ठीक है, आगे देखिए, आगे भी क्या लिखा होगा इसने, ये लिख रहा है द इंक्लूजन ऑफ दिस RCM-ITC बाय योर ऑफिस इज बोथ इनकरेक्ट एंड रिफ्लेक्ट लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक GST प्रोविजंस। सो नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग, ये क्या है, जेनरेटिव है, जैसा इसको इंस्ट्रक्शंस देंगे वैसा ये रिस्पांस देगा। तो जैसे हमने आपको बोला ना, बच्चे से बात करते, जैसे बोलते छोटे बच्चे के सामने जैसे आप बातें करोगे वो आपको आगे वैसे ही जवाब देगा। तो इन द सेम मैनर वॉट एवर यू गिव यू विल गेट। एनीवे सर, योर क्वेश्चन कुछ पूछ रहे थे आप? सर ये मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था, प्रॉम्प्ट में लिखा था, ये मैंने भी पीछे लिखा था। मैंने आपको बोला ना कि बजट 24 की जगह आप स्पेसिफिक सेक्शन और नोटिफिकेशन नंबर दे दो तो वो स्पेसिफिक नोटिफिकेशन सेक्शन ले लेगा। कॉन्टेक्स्ट अगर आप कुछ भी दोगे, आपका कॉन्टेक्स्ट वो ले लेगा। आप इसको गलत सेक्शन लिख के दे दो तो गलत सेक्शन ले लेगा, आंसर में दे देगा आपको। ठीक है, यस प्लीज। नो, लेट मी क्लैरिफाई, CA-GPT मैं इसको भी आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, CA-GPT इंटरेस्टिंग पॉइंट है, प्लीज रिमाइंड मी अगर मैं भूल जाऊं तो। ठीक है सर, एंड में इस लेटर को कंक्लूड कैसे करता है? हाँ। आज सीतारमण टू अपोलोजाइज। CC टू सीतारमण जी कर देता हूं। ये लिख रहा है फेलियर टू डू सो विल रिजल्ट इन अवर परसुएसिंग लीगल एक्शन including filing appeal and seeking compensation for mental and financial harassment. Hello. Sir, How far is the data accuracy? Do we need to still continue and check the numbers whether it has rightly picked up sir, or not? you need to check, always check. ठीक है, because ये कभी कभी गलत कर भी सकता है। अभी जो डेटा इसने उठाया वो नोटिस से एक्यूरेट उठाया, मैंने जो इसको प्रॉम्प्ट में दिया है वो भी दिया है, बट इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर हमारे, मैंने बोला ना सर इसको बिल्कुल So we अपना, need to vet it. सर हमेशा इसको अपना असिस्टेंट समझिएगा, इसको अपना बॉस मत समझिएगा। ठीक है, असिस्टेंट समझेंगे तब इसका आप यूज कर पाएंगे, अगर बॉस समझ लेंगे तो फिर क्लाइंट कहेगा भाई हम आपके पास क्यों आए, तो ChatGPT के पास जाएंगे। ठीक है, सो यू गॉट माई पॉइंट कि व्हाट आर द लिमिटेशंस। अगर इसको मैं इसमें देखिए एक चीज और करता हूं मैं, रीड्राफ्ट विद रेलिवेंट केस लॉज इशूड इन October 24। अभी देखिए इसने क्या किया, यहां पर इसने साइट, GST की साइट से सर्च किया रेलिवेंट ITC के केस लॉज। ठीक है, मैंने इसमें वेब सर्चिंग का ऑप्शन ऑन कर रखा है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, अब जो आपको केस लॉ देगा तो ये अब आपको यहाँ केस लॉस के साथ देने का प्रयास करेगा। ये देखिए मिल गया इसको केस लॉ, ओरिएंट ट्रेडर्स वर्सेस डेप्यूटी कमिश्नर कर्नाटका हाई कोर्ट। ठीक है, आई डोंट नो कि ये एग्जिस्ट करता भी होगा कि नहीं करता होगा। ठीक है, बट उसने ऊपर दे रहा था कि हमने वेबसाइट से सर्च किया है, तो हो सकता हो कि वेबसाइट से सर्च करके लाए। अगर मैं इसको ये बोलूं रीड्राफ्ट विद केस लॉ इशूड इन December 24, अभी दिसंबर आया नहीं है, तो अभी चेक करेंगे, देखते हैं क्या करता है ये लीजिए। सो इसका मतलब ये नहीं कि हम ChatGPT यूज करना बंद कर देंगे। ChatGPT हमें बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। मैंने देखा मेरे ऑफिस में जो पहले मेरा जो जूनियर असिस्टेंट था, मुझे बिल्कुल उसकी याद दिलाता है ये, कि मैं उसको जो बोलता था वो करके ले आता था। फिर मैं पूछता था भाई कैसे किया, सर वो पिछले वाले से मैंने कॉपी कर लिया, ये लगा दिया। अरे भाई कॉपी पेस्ट भी करना है तो कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा कि हर एक का कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता है। सो
दैट वी शुड बी केयरफुल कि हमें जो देखना है क्या चीज़ इससे चाहिए, वी शुड बी वेरी केयरफुल। तो मैंने आपको यहाँ पर इसकी लिमिटेशन दिखाने का प्रयास किया कि आप कभी भी चैट जीपीटी का यूज़ करके केस लॉ मत लीजिएगा। इसने देखिए भविष्य का, हो सकता है भविष्य में केस लॉ आ जाए भविष्यवाणी कर दी हो इसने, दैट मे बी पॉसिबल। एनीवे, चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट यूज केस। ये मैंने आपको, तो आई होप मेरा पॉइंट आप सभी को क्लियर होगा कि नोटिस का रिप्लाई अगर हमें देना है तो किस तरीके से हमको देना होगा। पहले उसको बोलेंगे रीड करो, एनालाइज करो, एक्सप्लेन करो, फिर हम उसको, हम जो बोलेंगे वो रिस्पॉन्स हमको चाहिए उससे। हमें उसका रिस्पॉन्स नहीं चाहिए कि वो हमारे लिए लिखे, हम उसका यूज करेंगे कि उसके पास ड्राफ्टिंग कैपेबिलिटी अच्छी है, तो कॉन्टेक्स्ट हम प्रोवाइड करेंगे, ड्राफ्ट वो करेगा। आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए, तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट चीज पे डिस्कस कर लेते हैं एक और। अच्छा, आप में से सभी लोग ऑडिट करते ही होंगे, आप में से ऑडिट का एंगेजमेंट लेटर सभी लोग लेते होंगे। अभी आपने रिसेंट में केस सुना है, सीसीडी के जो ऑडिटर्स थे उनके ऊपर 10 करोड़ की पेनल्टी लगी है। सुना है नहीं सुना है? सुनने में आया होगा। सीसीडी के जो ऑडिटर्स हैं उनके ऊपर शायद नफरा ने लगाई है 10 करोड़ की पेनल्टी। आई थिंक नफरा ने, या सीए की, जो नफरा ही लगा सकती, इतनी बड़ी पेनल्टी सीए तो नहीं लगाएगा। सर बैठे हैं सामने, इतना तो दिल उनका भी है कि नहीं 10 करोड़ तो नहीं लगाएंगे कमेटी में मेंबर्स ही तो अपने होते हैं। तो फिलहाल 10 करोड़ की पेनल्टी नफरा ने लगा दी। अब पॉइंट मेरा, मैं उस दिन, जिस दिन ये ऑर्डर आया था उस दिन मैं हैदराबाद में था। हैदराबाद में अपने जो ये आईसीए सीए कमेटी वालों के साथी था, आईसीए अपना जो एआई कमेटी की वहाँ पर एक वर्कशॉप वगैरह थी, उस पर था मैं। तो वहाँ पे कई सारे हैदराबाद के भी सीए थे और अलग लोकेशन से भी आए हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि सर, मैं चूंकि ऑडिट में नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैंने उनसे पूछा कि सर ये 10 करोड़ रुपए सीए भरेगा कैसे? मतलब पूरे अगर लाइफ में भी उसने 100 करोड़ की फीस ली होगी तो 10% फीस वो पेनल्टी में भर दे तो भी जायज़ है, लेकिन 10 करोड़ कमाए होंगे उसने ऑडिट करके, केवल ऑडिट करके, तो मुझे तो प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है। तो उन्होंने मुझे एक थॉट दिया दैट आई रियली अप्रिशिएट, जो हम फॉलो नहीं करते थे, हमारे कानपुर में शायद ही कोई फॉलो करता होगा। और मैंने उसके बाद जितनी जगह पूछा 99% लोगों ने फॉलो नहीं किया था। मुझे उन्होंने बताया कि सर ये जो 10 करोड़ की पेनल्टी लगी है वो अपनी पर्सनल जेब से नहीं भरेगा, ही विल गेट इट कंपनसेटेड फ्रॉम द क्लाइंट। हमने कहा क्यों, क्लाइंट क्यों देगा? तो उन्होंने बोला इंगेजमेंट लेटर जो होता है उसमें हम ये चीज़ मेंशन करते हैं, जितने भी बिग फोर्स हैं और जितनी भी बड़ी फर्म्स हैं ऑडिट करते हैं, ऑडिट के एंगेजमेंट लेटर में ये क्लॉज इंक्लूड कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज, वहाँ पर उन्होंने जो क्लॉज बोला, इंडेमनिटी क्लॉज। और मैंने इंडेमनिटी क्लॉज अभी तक किसी और के भी एंगेजमेंट लेटर में नहीं देखा था। तो यहाँ पर लेट अस सी कि अगर इसको हम बोलते हैं चैट जीपीटी को कि भाई मुझे एक एंगेजमेंट लेटर लिख के दो, आई एम स्टार्टिंग अ न्यू चैट, मैं इसको बोलता हूं राइट एंगेजमेंट लेटर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सीए फर्म फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24-25, कंपनी नेम इज ABC लिमिटेड एंड सीए फर्म नेम इज XYZ and company LLP। ठीक है, नाउ इट विल ड्राफ्ट एंगेजमेंट लेटर। तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑन द लेटर ऑफ कंपनी, सीए फर्म के लेटर हेड पे कर रहा है, टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंगेजमेंट लेटर। तो यहाँ पे इसने डिफाइन किया स्कोप, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फीस, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी, लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी, एंड इट हैज इंक्लूडेड द इंडेमनिटी क्लॉज। नाउ यू विल सी इंडेमनिटी क्लॉज में क्या लिखा, ABC लिमिटेड, ABC लिमिटेड इज ऑडिटी कंपनी, agrees to indemnify and hold harmless XYZ company LLP, its partners, employees and representative from and any against law any losses, damages, liabilities incurred in connection with any legal proceeding that may arise out of the performance of service, except where such losses are due to gross negligence or willful misconduct। यानी कि यहाँ पर क्या किया, एक इंडेमनिटी क्लॉज इंक्लूड किया। आप में से शायद ही हो सकता हो कुछ लोगों ने कर रखा हो, बट इंडेमनिटी क्लॉज नॉर्मली हम इंक्लूड नहीं करते हैं, बट वी शुड इंक्लूड इट
और अभी ऑडिट खत्म हुआ है तो अभी कर सकते हैं तो कर लीजिएगा हमेशा के लिए। इंडेमनिटी क्लॉज मस्ट बी देयर इन एवरी काइंड ऑफ एंगेजमेंट लेटर। हम में से 80% लोग जीएसटी, इनकम टैक्स फाइलिंग, आईटीआर फाइलिंग या जो भी अदर अलाइड सर्विसेज कर रहे हैं क्लाइंट के बिहाफ पे, हम किसी में एंगेजमेंट लेटर ही नहीं लेते हैं। लेते हैं क्या? लेते ही नहीं है नॉर्मली हम लोग एंगेजमेंट लेटर। बट वी मस्ट टेक द एंगेजमेंट लेटर एंड इंक्लूड दी दोज पॉइंट्स। इसमें एक पॉइंट और लिखिएगा इंडेमनिटी क्लॉज में कि कॉन्सिक्वेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या आ सकती हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमारे एक मिलने वाले फ्रेंड हैं, सीए हैं, वो उनके क्लाइंट के यहाँ सीबीआई ने छापा मारा। सीबीआई उनके क्लाइंट को लेके चली गई अंदर, क्लाइंट अंदर हो गया। अब सीबीआई ने सीए साहब को बोला कि भाई ये हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उन्होंने प्रोवाइड कर दिए। सीए साहब को अब सीबीआई ने वहाँ बुलाया कि यहाँ पर आकर के जरा एक बार हमें एक्सप्लेन करिए। दिल्ली बुलाया तो अब मना तो करेगा नहीं, वो दिल्ली गया, फ्लाइट के पैसे लगा के गया, दिल्ली में होटल में स्टे किया और उसने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कि भाई मेरे साथ क्या हो सकता है, उसने दिल्ली में किसी एडवोकेट से कंसल्टेंसी ली, वहाँ पे उसने 1 लाख रुपए फीस भी दी सी एडवोकेट की। तो यहाँ पर अब ये सब जो कॉस्ट आ रही है ये सब कौन बियर करेगा? दैट वी शुड ऑल्सो इनकॉर्पोरेट इन आवर एंगेजमेंट लेटर। ये हमें अपने एंगेजमेंट लेटर में इनकॉर्पोरेट करना होगा कि जो कॉन्सिक्वेंशियल जो भी एक्सपेंडिचर आएगा ड्यू टू एनी प्रोसीडिंग इनिशिएटेड अगेंस्ट द कंपनी एंड फॉर द पीरियड ऑफ ऑडिट, और उसमें सीए की जो भी कॉन्सिक्वेंशियल कॉस्ट आएगी, एक्सपेंसेस आएंगे, दैट विल बी रिम्बर्स्ड बाय द कंपनी। ये हमको अपने इंडेमनिटी क्लॉज में इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट इज द पॉइंट। आप यहाँ पर ये जो एंगेजमेंट लेटर है इसके थ्रू ड्राफ्ट करा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इसके साथ आपको अपना भी एप्लीकेशन ऑफ माइंड करना है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। इसने देखिए क्या किया, ऑडिट के एंगेजमेंट लेटर में इसने ये लिख दिया, इज इट एक्सेप्टेबल? इज इट एक्सेप्टेबल इन ऑडिट कि 50% फीस पहले दे दो एडवांस, बाकी 50% बाद में? मेरी नॉलेज में तो शायद ऐसा नहीं है कि हम ऑडिट में एडवांस पेमेंट ले सकते हैं ऑडिट फीस का, नहीं ले सकते ना सर। सो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा कि क्या ये जनरेट कर रहा है, आपको एक बार रिव्यू जरूर करना है बिफोर सेंडिंग इट टू एनीवन। ब्लाइंडली इसके ऊपर विश्वास नहीं करना है। ही इज योर असिस्टेंट, ये आपका असिस्टेंट की तरह काम करेगा, गलतियां कर सकता है। आप इसको बोलो कि भाई इसको मैं, देखिए इसको थोड़ा सा ट्रेनिंग भी देते हैं। इसको ट्रेनिंग क्या देते हैं, इसको यहां बोलते हैं एज पर ICAI नॉर्म्स वी कैन नॉट टेक द फीस in advance, so please update the engagement letter accordingly। थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे, समझ लेता है, ठीक है। अब नाउ यू विल सी कि अब यहां पर जो रिस्पॉन्स करेगा, फीस में लिखा आउट आवर प्रोफेशनल फीस फॉर ऑडिट शैल बी म्यूचुअली एग्रीड अपॉन एक्सक्लूडिंग टैक्सेस। अब उसने क्या किया, 50% एडवांस वाला क्लॉज रिमूव कर दिया। सो दिस इज द कैपेसिटी। आपने इसको ट्रेन किया, आपने इसको, अगर इसको यहां बोल देते मेमोरी में अपडेट कर लेता कि फॉर एवरी फ्यूचर रिस्पॉन्स मेरे ऑडिट के लेटर्स में फीस के बारे में एडवांस मत लिखना, तो फिर आगे जितने भी लेटर्स बनाएगा उसमें एडवांस नहीं लिखेगा। आई होप गॉट माई पॉइंट। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट यूज केस, एक और आपको दिखाते हैं कि जब हम ऑडिट करते हैं नॉर्मली व्हाट हैपेंस कि ऑडिट में बैलेंस शीट प्रिपरेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर और क्लाइंट। ध्यान रखिएगा, बैलेंस शीट प्रिपरेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लाइंट। तो क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्लाइंट की बैलेंस शीट का हम ऑडिट करते हैं। वो बात अलग है कि हमारे सुपरविजन में ही बन रही होती है बैलेंस शीट, लेकिन समटाइम्स हमारी खुद की नज़र पे नहीं पड़ता है कि भाई ये नॉन कंप्लायंस, क्योंकि ड्राफ्ट बैलेंस शीट क्लाइंट देता है, तो कई बार हमारी खुद की नज़र में नहीं पड़ता है कि ये बैलेंस शीट जो बनी है वेदर इट इज कंप्लायंट विद द प्रोविजंस और स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल और नॉट। सो व्हाट यू कैन डू, just simply upload your balance sheet. I am just uploading a sample balance sheet. मैंने एक इसको बैलेंस शीट प्रोवाइड करी और मैंने इसको, बैलेंस शीट पूरी कंप्लीट बैलेंस शीट है, ठीक है, जो डिवीजन 2 ऑफ शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनी है, इंडियाज बैलेंस शीट है ये। मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया
what are the major non-compliance of Ind AS in this balance sheet? Please provide the details in tabular format. ठीक, now let's see what happens. मैंने इसको response दिया, now it will analyze the data. Now you will see it is providing Ind AS references कि कौन से Ind AS है, उसकी requirement क्या है, क्या observation मिला. मे बी पॉसिबल कि आपने सही किया हो, इसकी नॉलेज अपडेट ना हो, या उसने कुछ अलग इंटरप्रेट किया हो, बट स्टिल अगर आपको 10 में से 2 पॉइंट भी अगर गलत दे दिए इसने, गलत मीन्स कि बैलेंस शीट में गलत है, तो आपका पर्पस तो अचीव हो गया ना, कि जो आपकी नज़र में नहीं पड़ रहे थे और 2 भी गलती अगर निकाल दी जिसको कि आप ठीक करा सकते हो, ठीक नहीं करा सकते तो ऑडिट रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, देन इट इज सफिशिएंट कि आपको इतने नॉन कंप्लायंस उसने दिए कि भाई इतनी चीज़ें यहाँ पर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दीज आर इन नॉन कंप्लायंस. तो यहाँ पर आपको उसने इतने पॉइंट्स दे दिए कि Ind AS 12 का नॉन कंप्लायंस है, Ind AS 115 का नॉन कंप्लायंस है, प्रेजेंटेशन जो Ind AS 1 है उसका नॉन कंप्लायंस है, इम्पेयरमेंट नॉन कंप्लायंस. सो दीज आर दी नॉन कंप्लायंस जिसका कि कंपनी ने प्रॉपर कंप्लायंस नहीं किया. ठीक है, अब हमारा उद्देश्य क्या है? हम केवल ये थोड़ा ना कहेंगे इससे कि भाई गलतियां निकालो. हम इससे कहते हैं कि गलतियां तो निकाल दी हैं, अब ये जो है इसका जो नॉन कंप्लायंस है इसका क्या सॉल्यूशन है. ठीक है, मैं इससे बोलता हूँ इसका क्या डिस्क्लोजर दे सकते हैं. अगर कोई चीज़ नॉन कंप्लायंस है तो भाई नॉन कंप्लायंस में ये Ind AS की बैलेंस शीट में नॉर्मली नॉन कंप्लायंस क्या होता है, डिस्क्लोजर प्रॉपर नहीं होते हैं, दैट इज द नॉन कंप्लायंस. तो मैंने उसको बोला ड्राफ्ट ए प्रॉपर डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड इन Ind AS विद प्रॉपर रेफरेंस टू रिजॉल्व अबव नॉन कंप्लायंसेस. ठीक, सो नाउ व्हाट यू विल डू, अब इसने देखिए प्रॉपर जो डिस्क्लोजर्स बैलेंस शीट में देने चाहिए, इट हैज स्टार्टेड ड्राफ्टिंग दोज डिस्क्लोजर्स कि आपका डिफर्ड टैक्स जो इनकम टैक्स का जो प्रोविजन है उसकी जो नॉन कंप्लायंस थी उसमें क्या डिस्क्लोजर कंपनी को देना चाहिए था. ठीक है, फिर इसमें रेवेन्यू रिकॉग्निशन में क्या डिस्क्लोजर आपको दे देंगे तो ये नॉन कंप्लायंस कंप्लीट हो जाएगी. ये डिस्क्लोजर प्रॉपर जो रिक्वायरमेंट है एज पर Ind AS वो नहीं थे. Ind AS 1 की जो नॉन कंप्लायंस है, करंट वर्सेस नॉन करंट का क्लासिफिकेशन का कुछ डिस्क्लोजर था, वो उसको प्रॉपर कर देंगे तो हो जाएगा. इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, तो दीज आर द डिस्क्लोजर्स यहाँ पर उसने प्रोवाइड कर दिए. तो अब आपको यहाँ पर देखा आपने कि भाई प्रॉब्लम बताएगा और प्रॉब्लम का क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है, यहाँ पर आपको ये भी बता देगा. आपने देखा होगा बैलेंस शीट में लास्ट में हम लोग एक वो देते हैं रेशियोज. ठीक है, बैलेंस शीट में रेशियोज देते हैं. अब मान लीजिए हमने सपोज करिए कि रेशियोज नहीं बनाए हैं, इस बैलेंस शीट में रेशियोज नहीं लगे हैं. ठीक है, तो हम इससे क्या बोलते हैं, यहाँ पर ये लगे हुए हैं, चलो चेक कर लेते हैं रेशियो सही है कि नहीं. हमने इसको इंस्ट्रक्शन दिया चेक द की रेशियोज कैलकुलेटेड इन द बैलेंस शीट एज रिक्वायर्ड इन शेड्यूल 3. तो जो बैलेंस शीट में रिक्वायर्ड है उन रेशियोज को एक बार क्रॉस चेक कर लो. सो नाउ इट स्टार्टेड एनालाइजिंग, यहाँ पे देखिए दिखा रहा है एनालाइज कर रहा है वो. अब ये पूरी बैलेंस शीट में करंट, नॉन करंट, एसेट्स, लाइबिलिटीज सारे डेटा को उठाएगा और उसके बेसिस पर ये एनालाइज करना स्टार्ट किया. नाउ यू विल फाइंड की फाइनेंशियल रेशियोज. इसने क्या निकाला, करंट रेशियो निकाला. कैसे निकाला है, ये 2024 का क्या है, ये सारे रेशियोज इसने प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया. ये नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सारे बाकी रेशियोज भी आपको दिखने लग जाएंगे. यहाँ पे इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो. तो ये रेशियोज भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर देगा. नाउ इसको हम बोलते हैं कि ठीक है, अच्छा चलो ये बैलेंस शीट हमने बना दी है, बनी हुई है, और क्लाइंट ने जो नॉन कंप्लायंस थी, ठीक है, बैलेंस शीट में जो नॉन कंप्लायंस थी उसके बेसिस पे इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट ड्राफ्ट कर दो. आपको इसकी ड्राफ्ट की रिपोर्ट लगानी नहीं है, क्योंकि हो सकता है जो रिपोर्ट में बाकी और पैरामीटर्स देने होते हो मे बी पॉसिबल ना इंक्लूड करें, लेकिन आपको कुछ अगर कीवर्ड की पॉइंट्स आपके काम के मिल जाते हैं देन इट विल बी सफिशिएंट कि आपका काम उससे पूरा हो गया. तो यहाँ पे देखिए इसने क्या किया, एक ओपिनियन ड्राफ्ट करना स्टार्ट किया. ओपिनियन बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन, कि जो जो डिस्क्रिपेंसीज हैं उनके बेसिस पे क्या क्वालिफाइड ओपिनियंस हो सकते हैं, किसको एम्फेसिस ऑफ मैटर देना है वो इसने यहाँ पर उठा लिया कि एस्केलेशन क्लेम इन रेवेन्यू कंपनी ने इतने रिकॉग्निशन किया, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग. तो यहाँ पर ये सारे एम्फेसिस ऑफ मैटर्स में क्या देने, अनक्वालिफाइड ओपिनियंस, अदर क्या है, अदर इन्फॉर्मेशन. तो अब यहाँ पर आपको ये नहीं करना है इससे कि आपने चैट जीपीटी की रिपोर्ट उठाई और चिपकाई और आगे बढ़ाई. प्लीज डू नॉट डू दिस. चैट जीपीटी या किसी भी टूल का यूज करते हुए आप उससे कंटेंट लीजिए, पढ़िए, एनालाइज करिए, क्योंकि जहां पर कई बार होता है कि हमारी खुद की नजर नहीं पड़ती है वहां पर आपको ये अपनी नजर दे सकता है.
ठीक है, सो यू विल गेट मच बेटर रिस्पॉन्स इन दोज केसेस। अब मैं इसको एक काम और बोलता हूँ कि भाई बैलेंस शीट बना दी है तो एक काम कर दो, अब हमारे बैलेंस शीट के बाद ITR का कंप्यूटेशन भी तो बनता है, क्या ये बना देगा? लेट्स सी। मैंने उसको देखिए इंस्ट्रक्शन दिया, ड्राफ्ट कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर एडजस्टिंग द अलाउड नॉन अलाउड एक्सपेंडिचर एज पर इनकम टैक्स एक्ट। मीन्स यू कैन इमेजिन कि जितनी देर में हम सोच रहे हैं उतनी देर में उसने कर दिया, सोच भी नहीं पाया और कर दिया उसने। मे बी रॉन्ग, in some cases it may be wrong, but it will give you certain things, that is the standard formats, way of presentation that we can take it, कि किस तरीके से किस चीज़ को प्रेजेंट करना है, किस तरीके से दिखाना है। तो देखिए इसने क्या किया, प्रॉफिट लॉस में कितना प्रॉफिट था, 14 करोड़ 20 लाख का प्रॉफिट था। डेप्रिसिएशन कंपनीज एक्ट वाला डिसअलाउ कर दिया, इनकम टैक्स वाला यहाँ पर इंक्लूड किया, ठीक है। अदर अनसर्टेन लाइबिलिटीज डिसअलाउड की, प्रोविजन फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये माइनस किया। तो व्हाट वी फाइंड कि ये देखिए किस तरीके से इसने इनकॉर्पोरेट किया। अदर सोर्सेज सेपरेट कर दिए, बैंक इंटरेस्ट या LD जो लिक्विडेटेड डैमेजेस अर्न किया कंपनी ने, तो ये पूरा इसने बना के प्रोवाइड कर दिया। सो यहाँ पे देखिए टैक्स भी कैलकुलेट कर दिया उसने, अपने आप ले लिया कि देखिए न्यू टैक्स रिजीम है। दिस इज रियली अप्रिशिएबल कि भाई ये न्यू टैक्स रिजीम में आप जाते हो तो आपको ये यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट हम और भी दे सकते हैं, कंपेयर द टैक्स लाइबिलिटी इन न्यू एंड ओल्ड टैक्स रिजीम इन अबव केस इन टैबुलर फॉर्मेट। जब आप इसको बोलेंगे टैबुलर फॉर्मेट में दो, तब आपका प्रेजेंटेशन और अच्छा लगेगा आपको देखने में। तो यहाँ पे देखिए कि अगर टैबुलर फॉर्मेट में से बोला तो इसने किस तरीके से निकाला कि टैबुलर फॉर्मेट न्यू रिजीम में कितना टैक्स है, ओल्ड रिजीम में कितना टैक्स है। तो ये टोटल लाइबिलिटी उसने निकाल करके दे दी कि भाई ओल्ड रिजीम में जाते हैं तो ये टैक्स लाइबिलिटी बनेगी और न्यू रिजीम में इतनी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी। सो दिस इज द वे ऑफ प्रेजेंटेशन। आपको ये फूड फॉर थॉट देगा। You need to implement and apply in your case as per your convenience and as per your understanding. तो आपको इसको अपनी better understanding के साथ इसको implement करना है, that is your requirement. Next आता है, अभी कल recently आप सबने सुना होगा एक सफारी रिट्रीट का केस लॉ आया था, सुना है सबने? सफारी रिट्रीट। तो अब मान लीजिए ये सफारी सुना नहीं सुना है, सफारी रिट्रीट इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक डिस्प्यूट है, दैट इज रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि यूज की जानी है फॉर रेंटल अर्निंग्स। उस पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल पर या कंस्ट्रक्शन सर्विसेज पे इनपुट क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इट वाज अ डिस्प्यूट सिंस 3 to 4 years, 3 से 4 साल से केस चल रहा था। डिपार्टमेंट ने इनपुट क्रेडिट डिसअलाउ किया था, पार्टी चली गई हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ने कहा नहीं क्रेडिट मिलना चाहिए। फिर हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में डिपार्टमेंट चला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का 1 साल से जजमेंट पेंडिंग था, कल वो जजमेंट आ गया। तो जजमेंट की कॉपी हमारे पास है। मुझे नहीं पता कि जजमेंट में क्या है, तो मैं क्या करता हूं, इसको बोलता हूं कि भाई ये मेरा जजमेंट है, सफारी रिट्रीट का जजमेंट है। इट इज अप्रॉक्सी 91 पेजेस का जजमेंट है। मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं 91 पेजेस पढ़ के फिर आपको समराइज करूं। सो व्हाट आई विल डू, आई विल आस्क माई assistant named ChatGPT summarize this case, this judgment, and give key takeaway from this judgment. Now it will summarize entire 91 pages and you will see the speed. आप जितनी देर में एक पेज नहीं पढ़ पाओगे, उसने पूरे 91 पेजेस पढ़ा। आपने एक मूवी देखी होगी, रोबोट आई थी आज से 8-10 साल पहले, 15 साल पहले आई होगी, जिसमें रजनीकांत की थी। वो किताब ऐसे उठाता था, सर सर ऐसे पढ़ता था ना। एक्चुअल है ये, इट इज रियल। हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है, इसमें एक वर्ड यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। NLP, अगर आप AICA का जब कोर्स करेंगे देन यू विल गेट द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस NLP वर्ड। NLP कैसे काम करता है, और जनरेटिव AI वर्क्स ऑन दी NLP टेक्नोलॉजीज, NLP के ऊपर काम करता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो ये जो परफॉर्मेंस है, स्पीड है, ये जो आ रही है, ये NLP टेक्नोलॉजी की वजह से आ रही है, जिसमें कि डिफरेंट आपका जो भी लैंग्वेज है, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, इसमें करीबन 15-20 लैंग्वेजेस को ये ChatGPT सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे
कि ये 91 पेजेस के जजमेंट को इसने की टेक अवे आपको प्रोवाइड कर दिया कि डिस्प्यूट ऑन एलिजिबिलिटी था, कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज किया गया सेक्शन 17(5) को, हाई कोर्ट की इनिशियल रूलिंग क्या थी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कंसीडर किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसको प्लांट और मशीनरी माना जा सकता है क्या, ठीक है। सो व्हाट, ये क्या 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 इंपैक्ट आएगा डेवलपर के बिजनेस पे, दैट इज अ गुड थिंग। अब आप में से कुछ लोग अगर वो सोशल कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं कि भाई हम अपने फेसबुक, ट्विटर या लिंक्डइन पे हम पोस्ट करते रहें, अपनी चीज़ें अपडेट करते रहें, अपने क्लाइंट्स को कुछ इन्फॉर्मेशन भेजनी है, आप इसको डालिए, रिस्पॉन्स लीजिए, आप अपना चिपकाइए, ठीक है। बट बिफोर चिपकाने से पहले पढ़ लीजिएगा, करेक्ट, बिकॉज इट हैज़ कैपेबिलिटी टू जनरेट। 2024 के भविष्य की बात कर दी दिसंबर 24 की इसने। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड इट्स कैपेबिलिटीज। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है, इसकी लिमिटेशन आपने देख ली और कैपेबिलिटीज आपने देख ली, अब आप इसको यूज करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे? आप में से कोई है जो कहे नहीं मुझे यूज नहीं करना, इसकी लिमिटेशंस हैं? आई होप सभी यूज करना चाहेंगे, क्योंकि बिकॉज द बेनिफिट्स इट इज ऑफरिंग इज मच हायर एंड द लिमिटेशन विच इट इज हैविंग इज बेनिफिशियल फॉर आवर प्रोफेशन। अगर ये लिमिटेशन नहीं होगी तो 2000 रुपए का चैट जीपीटी आपका क्लाइंट ले लेगा, कहेगा ठीक है अब सीए से ओपिनियन क्यों लें हम। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो ये लिमिटेशन जो इसकी है दैट इज फॉर आवर बेनिफिट एंड आवर इंटरेस्ट, नॉट फॉर द लॉस, ठीक है। सो व्हाट इट कैन डू, इट कैन समराइज एनी जजमेंट, एनी केस लॉ, ये आपको पूरा इसका रिस्पॉन्स दे सकता है। इसके साथ अभी इस जजमेंट पे आप और भी कन्वर्सेशन कर सकते हो, आप इसको कुछ भी लिखोगे उसके बेसिस पर आपको रिस्पॉन्स देगा कि Yeah, it has covered all the important point. That is sufficient for you. अगर आपको इस पर डिटेल्ड किस और वर्किंग करनी है, देन 91 पेजेस में क्या लिखा है, कुछ तो लिखा ही होगा, तो वो आप इसमें मांग सकते हो, ठीक है। आई होप मैं अपना पॉइंट आप सब तक पहुंचा पाया हूं। मैं एक लास्ट पॉइंट और लूंगा, इसके बाद आई थिंक सर बैठे हुए हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, तो उसको मैं कवर कर लेता हूं। अभी आप सबने सुना होगा, आप में से कितने लोग जीएसटी की प्रैक्टिस करते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। गुड नंबर्स, वेरी गुड। तो आप सभी को पता होगा सर्कुलर नंबर 183 एंड 193 सुना है? नंबर से नहीं याद रहता है, मालूम है मुझे। कौन सा आप चैट जीपीटी हो? ना हमें ना आप, मुझे भी याद नहीं रहता है, लेकिन अब जो काम करते हैं उसका थोड़ा बहुत रखते हैं रेफरेंस। सर्कुलर 183 आया था कि 2017, 18, 18, 19 और 19, 20 के 17, 18, 18, 19 में जितने भी इनवॉइस आपके 2A में नहीं दिख रहे हैं उसका क्लेम आप एक सर्टिफिकेट लेकर के दे सकते हो। याद आया? दिए भी होंगे, ठीक है। अब यहां पर ये जो सर्कुलर था, जब ये आया था तो इस सर्कुलर का मैं यहाँ पर एक कंटेंट उठाता हूं। ये सर्कुलर नंबर 183 और 193 दो सर्कुलर्स थे। 183 वॉज फॉर 17-18, ठीक है, इनिशियल ईयर्स के लिए था, और 193 आगे के सालों के लिए था, जब से वो चालू कर दिया था उन्होंने रूल 36(4), ठीक है। तो मैं इसको बोलता हूं, यहां पर एक सर्कुलर है, इस सर्कुलर को मैं यहां पर अपलोड करता हूं। तो इट हैज कैपेबिलिटी टू एनालाइज दी सर्कुलर, गेट इट इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट कैसे लेना है, लेट्स सी। यहां पे देखिए इसका सर्कुलर मैंने इसको अपलोड किया और मैं इससे बोलता हूं एक्सप्लेन दी सर्कुलर। सिंपल, इस सर्कुलर को एक्सप्लेन करो, क्योंकि अब सर्कुलर आप पढ़ोगे तो कम से कम 10-15 पेजेस का है, बट इसने क्या किया, की पॉइंट्स ऑफ सर्कुलर दिए कि पर्पस क्या था। 183 का पर्पस था कि 17-18 और 18-19 की आईटीसी के लिए जो 2A में नहीं दिख रही हैं उसका आप क्या कर सकते हो, आप ले सकते हो, ठीक है। यहां पर उसका आप यहां पे अगर मिसमैच है तो यहां मिसमैच के बेसिस पे आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो। प्रोसीजर क्या है, प्रॉपर ऑफिसर विल वेरीफाई टैक्स पेयर मीट द कंडीशंस, अगर कंडीशंस मीट करता है तो यहां पर उसका एक सर्टिफिकेट दे देगा। इफ डिफरेंस एक्सीडिंग 5 लाख तो सीए का सर्टिफिकेट लगना है, ठीक है। फॉर स्मॉल डिस्क्रिपेंसीज 5 लाख सर्टिफिकेट फ्रॉम द सप्लायर सफिशिएंट है, यही तो है ना, ठीक है। जो 193 आया वो अगले सालों के लिए था, 1/4/19 से 31/12/21 तक के लिए, जब तक वो 2B से एग्जैक्ट 100% मैचिंग का काम नहीं चला तब तक के लिए ये सर्कुलर काम करेगा, 31 दिसंबर 2021 तक के लिए। तो यहां पर 36(4) जब से एप्लीकेबल हुआ उसके बाद से के लिए ये सर्कुलर है, तो ये उसने दे दिया। अब मेरा पॉइंट ये था कि भाई ये सर्कुलर दे दिया, लेकिन मुझे फॉर्मेट नहीं पता कि किस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट देना है। तो मैंने इससे बोला प्रोवाइड मी फॉर्मेट टू बी गिवन बाय दी supplier in case where tax is less than 5 lakh।
मेरे पास फॉर्मेट नहीं था, गूगल पे भी ऐसा कोई फॉर्मेट पहले से था नहीं, ठीक है, लोगों ने बनाया था अपना फॉर्मेट, तो हम सब लोग, मेरे पास न जाने कितने लोगों के फ़ोन आए कि भाई फॉर्मेट दे दो, तो मैंने उस फॉर्मेट को फिर एक किसी लिंक पे डाल दिया, कोई मांगता था लिंक भेज देता था मैं उसको एक समय के बाद, इतने मेरे पास कॉल्स आते थे। तो यहाँ पे देखिए क्या किया इसने, सर्टिफिकेट बाई सप्लायर फॉर ITC क्लेम वेयर अमाउंट इज लेस देन 5 लाख। ये काम हो चुका है, लेकिन मैं आपको इसकी कैपेसिटी बताना कि एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि कैपेबिलिटी क्या है इसकी। इट कैन जनरेट द सर्टिफिकेट फॉर्मेट फॉर यू विच कैन बी यूज्ड फॉर दैट पर्पस। तो यहां पे देखिए सर्टिफिकेट दिया उसने, अब देखिए कितना ब्यूटीफुली ड्राफ्ट किया कि भाई ये कंफर्म करता है, आई कंफर्म दैट सप्लाई इज मेड बाय सप्लायर एंड रिसिपिएंट ड्यूरिंग द पीरियड मेंशन एज पर फॉलोइंग डिटेल्स, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट। I hereby certified that our supplies have been duly reported in GST returns and the GST amount pertaining to said have been fully discharged in the respective returns form GSTR 3B. तो that is the sufficient certificate. तो यहाँ पर क्यों 2A में नहीं दिखा पाए, ड्यू टू रीजंस, यहाँ रीजंस आप अपना दे सकते हो। तो यहाँ पर उसने पूरा डिक्लेरेशन दे दिया कि आई डिक्लेयर इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट एंड ट्रू। तो दिस इज द फॉर्मेट। अब मैं इसको एक चीज और बोलता हूँ, प्रोवाइड मी फॉर्मेट ऑफ certificate to be given by CA where tax is more than 5 lakh. Now it will provide the certificate for CA to be given by the CA on the letterhead of chartered accountant. CA क्या certify कर रहा है, I so and so chartered accountant memberships holding COP member so and so, आपको लिखना है तो लिखो, नहीं तो that is giving the format. सप्लायर डिटेल्स यहाँ पर दे रहा है कि ये सप्लाई पे हुई है, वेरिफिकेशन किया मैंने, मैं सर्टिफाई करता हूँ, यूडिन नंबर वगैरह उसने प्रोवाइड कर दिया और ये डिक्लेरेशन दे दी। सो इट हैज़ प्रोवाइडेड यू दी सर्टिफिकेट। अब नाउ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसने एक सर्टिफिकेट दिया ना, सर्टिफिकेट मांगा, सर्टिफिकेट दे दिया। इफ़ यू वांट कि नहीं ये सर्टिफिकेट में मज़ा नहीं आया, अच्छा नहीं लग रहा है, तो कोई बात नहीं, आप इसको बोलो ना कि अच्छा नहीं लग रहा है। इट हैज़ कैपेसिटी टू जनरेट, तो जनरेट कर देगा। मैं इसको बोलता हूं गिव मी 3 फॉर्मेट ऑफ CA सर्टिफिकेट फॉर अवर केस। तो अब ये 3 फॉर्मेट दे देगा मुझे, उसमें क्या है, ये लीजिए पहला फॉर्मेट नंबर 1, फिर आगे देगा ये फॉर्मेट नंबर 1 दे दिया इसने, ठीक है, फिर इसके आगे नेक्स्ट फॉर्मेट बना देगा, ये लीजिए फॉर्मेट नंबर 2 सिंप्लीफाइड सर्टिफिकेट, ये लीजिए। सो इट हैज कैपेसिटी। अगर आपको एक चीज पसंद नहीं आती, आप उससे बोलो कि नहीं अच्छा नहीं लगा, तुम अच्छे नहीं हो, तो ये मान जाएगा, ठीक है अच्छे नहीं है तो दूसरा ले लो भाई, दूसरा जनरेट कर दूंगा मैं। ये लीजिए तीसरा सर्टिफिकेट फॉर फोकस ऑन कंप्लायंस। तो यहां पर क्या करता है, ये कैपेसिटी है इसकी, इट कैन जनरेट एंड हाउ यू कैन यूटिलाइज इट एज पर योर रिक्वायरमेंट, यू नीड टू डिसाइड, यू नीड टू टेक द डिसीजन, अदरवाइज वो दिसंबर 2024 भविष्य की भी बातें करता है, ठीक है। विद दीज वर्ड्स आई वुड लाइक टू थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा CAGPT, हाँ वेरी गुड, थैंक यू मैम, चलिए बहुत अच्छा रहा आपने याद दिलाया। मैं बस 2 मिनट लूंगा CAGPT के बारे में बताने के लिए। GPT मैंने आपको बताया था क्या था, जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। तो CAGPT भी जो क्या है, CAGPT इज एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ ChatGPT। अभी ऋषिर ने आपको दिखाया था कि हम अपना खुद का GPT बना सकते हैं, बताया था ना, ठीक है। तो CA इंस्टीट्यूट ने क्या किया, CA इंस्टीट्यूट की जो AI कमेटी है, अपनी AI कमेटी ने अपने किसी प्रोफेशनल्स टीम को एंगेज करके अपने खुद के कस्टम GPT ChatGPT के बेस पर बना दिए हैं। अब उसको क्या किया, CAGPT में उन्होंने करीबन शायद 12 तरीके के GPTs डेवलप किए हैं फॉर डिफरेंट नॉलेज डोमेन, की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए, डायरेक्ट टैक्सेस के लिए, अलग अलग डोमेन के लिए अलग अलग GPTs बना दिए। सो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, CAGPT इज बेस्ड ऑन ChatGPT। इफ यू वांट टू यूज द CAGPT यू नीड टू लॉग इन टू द ChatGPT, ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे आपका कोई विंडोज है, आप विंडोज यूज करते हैं, विंडोज 11, अब कोई सॉफ्टवेयर बना विंडोज 11 पे तो विंडोज में ही काम करता है, ठीक है, आप उस सॉफ्टवेयर को मैक में यूज नहीं कर सकते हैं। इन द सेम मैनर CAGPT जो बना है वो किस पे बना है, ChatGPT के ऊपर बेस करके बनाया गया है, तो वो कहां पे काम करेगा, ChatGPT पे काम करेगा। तो CAGPT ChatGPT के बेस पे काम करता है।
अब ये काम कैसे करता है, सीए इंस्टीट्यूट ने क्या किया, एआई कमेटी ने, कि जितने भी तरीके के कंटेंट, देखिए आपको मैंने बताया जनरेटिव एआई कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स, डेटा, सेकंड ट्रेनिंग, फर्स्ट इज डेटा, सेकंड इज ट्रेनिंग। तो व्हाट सीए जीपीटी डू, सीए जीपीटी काम क्या करेगा, जो चैट जीपीटी जैसे करता है लेकिन वैसे ही करेगा, लेकिन ये मोर प्रिसाइज इंफॉर्मेशन, मोर प्रिसाइज एंड स्पेसिफिक रिस्पॉन्स आपको प्रोवाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ डेटा प्रोवाइडेड बाय दी सीए इंस्टीट्यूट। सीए इंस्टीट्यूट के पास जितना भी पब्लिकेशन था, जितने भी उन्होंने गाइडेंस नोट, अपने टेक्निकल गाइड्स वगैरह जितने भी इशू किए हैं, वो सारे सीए जीपीटी पे उन्होंने अपलोड किए और उसको अपनी तरीके से उन्होंने ट्रेनिंग दी है कि भाई ये क्वेश्चन करने पे ये रिस्पांस देना है, ये रिस्पांस नहीं देना है। तो दे हैव प्रोवाइडेड द ट्रेनिंग टू दिस सेपरेटली टू दिस सीए जीपीटी, और वो सीए जीपीटी आपके पास अवेलेबल है। तो आपको सीए जीपीटी यूज करना है तो इन आईसीआई की वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहां पे अपने मेंबरशिप नंबर से लॉगिन करेंगे और आपको क्लिक करते ही आपके चैट जीपीटी पे वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो वो चैट जीपीटी पे काम करेगा वो। अब इसमें पॉइंट आता है, कई लोग पूछते हैं क्या सीए जीपीटी इसकी कोई फीस लेता है, तो आंसर इज नो। सीए जीपीटी सीए इंस्टीट्यूट ने अपनी कॉस्ट पे बनवाया है, बट सीए इंस्टीट्यूट इज नॉट चार्जिंग अ सिंगल रुपी फ्रॉम मेंबर्स फॉर यूजिंग इट। कोई भी फीस चार्ज नहीं कर रहा है कि सीए इंस्टीट्यूट कोई फीस लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बट इफ यू वांट टू यूज द सीए जीपीटी, यू नीड टू यूज द चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी में क्या है, आपको कन्वर्सेशन फ्री में देता है वो करने के लिए, लेकिन अगर आप उसका प्रोफेशनल यूज करते हैं, उसकी एक लिमिट बना रखी है कि भाई इतने कन्वर्सेशन तक आपको फ्री रिस्पांस देगा। लेकिन अगर आप उसका एक्सेस यूज करने लगते हैं, जो उसकी लिमिट है, लिमिट के बियॉन्ड अगर आप जाते हो, तो उसके बाद वो कहता है कि भाई पैसे दो या थोड़ी देर बाद आना। दो चीजें कहता है वो, ऐसा नहीं कहता कि नहीं पैसे ही दो तभी हम करने देंगे, कहता है पैसे दो यानी कि सब्सक्रिप्शन ले लो उसका, सीए जीपीटी का नहीं, चैट जीपीटी का। सीए जीपीटी इज फ्री, ठीक है। चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन दो कि उसका प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, जैसे विंडोज पे आप कोई प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो तो विंडोज की लाइसेंस कॉस्ट होती है, ऐसे सीए जीपीटी मंथली कॉस्ट चार्ज करता है, तो वो आपको पे करना पड़ेगा और उसके बाद आप चैट जीपीटी में ही सीए जीपीटी यूज कर सकते हो। और अगर आपके पास टाइम है, पेशेंस है, तो आप 3 घंटे या 4 घंटे का वो हॉल्ट देता है, उसके बाद फिर से कहता है यूज करना चालू कर दो। और एक टिप आप है आपके लिए, आपको अगर ज्यादा यूज करना है तो जितनी ज्यादा जीमेल अकाउंट है उतने ज्यादा जीमेल अकाउंट पे सीए जीपीटी यूज कर लो आप चैट जीपीटी के लॉगिन करके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। Please sit on the stage.